we are towards the end of the day and सबका energy थोड़ा कम हो गया है, but we want all the participants to be enlightened about their own health. So let's just be a little more participative and please switch on your camera, Geeta ma'am, Devansh sir, Kulvinder sir, नीलम मैम, अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो इट वुड बी रियली नाइस सो दैट आई नो हु आई एम इंटरेक्टिंग विथ. Thank you so much once again. So Ashtang Chikitsa webinar is about neuromuscular health issues. So it's either a neuro problem or musculoskeletal problems. जो आज ज्यादातर आदमी को होता है because of their sedentary lifestyle, because of the eating habits, and various other climatic conditions and the food intake. Does everybody agree with me? Give me a quick thumbs up. Sapna ma'am, Pragya ma'am, please switch on your video. Geeta ma'am, thank you so much. It is an earnest request. अगर आप लोग वीडियो ऑन नहीं करेंगे सो आई वुड अंडरस्टैंड कि आप मुझे शायद सुन नहीं रहे हैं, और अगर आप हमें सुनेंगे नहीं तो इस वेबिनार से आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा. सो इट वुड बी रियली रियली नाइस इफ यू कैन हैव योर कैमरास ऑन. थैंक यू सो मच. तो आई एम श्योर among the 130 participants there are problems with most of the participants, or you are looking for solutions to some of your near and dear ones who is suffering from either neuro or musculoskeletal problems. So hota kya hai, especially for women, once they are in their 50s, they start having these joint issues. But kya ye joint issues aaj ka hai? Bilkul nahi. It has started 25 years back, but it is surfacing today. So do we want to know what is the reason कि जो हमें बहुत साल पहले शुरू हो गया है वो आज क्यों मुझे तकलीफ दे रहा है? In my aging process, in my menopause age, why am I getting these problems? कितने लोग यहाँ पर जानने को उत्सुक हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स आखिर होता क्यों है? Yes or no? Unless and otherwise I get a thumbs up, I will not be able to share the screen. Thank you so much. 2 thumbs up. I would like more of the participation from the participants. Thank you so much. So if you give me 2 minutes of your time, I would like to share the screen to enlighten you more about your health and how you can lead a medicine-free life. So thank you so much. I will share the screen. Just give me 2 minutes. Ashtang Chikitsa, online therapy for neuromusculoskeletal problems. Namaskar. I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. Ashtang Chikitsa can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. Now, I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He's taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life threatening diseases like cancer.
At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say the structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way, that's our purpose at Avisa Healing and Fitness. Profound way of addressing the aspects of a human body. Let's come to the very vital fact as to who is this webinar for. For people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa, freedom from pain and medicine. Swamiji will talk about the Ashta Sharir, the 8 softwares. So he will give you the details of these 8 softwares which is there in our body. Shrishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Brahman Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti and the Vikriti Sharir. So when we talk about the neuromuscular health issues, we are talking about the Prakriti and the Vikriti Sharir. So by Prakriti, we mean the regenerative factor of the body. By Vikriti, we mean the degenerative factor of the body. So Ashtang Chikitsa can heal. Of course, the list goes on and on, but these are the most commonest problems that we encounter in our every week sessions that we are conducting. Knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine related issues, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. Ashtang Chikitsa can heal some more chronic diseases like muscular dystrophy, multiple sclerosis, TMJ disorder, varicose veins, psoriatic arthritis, Ehlers-Danlos syndrome, spinal stenosis, myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylosis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, ABN, Alzheimer's disease or dementia, glaucoma, vertigo, ankylosing spondylitis. So let's hear from Swami Raj Vibhuji. How can we come out of our current health issues and improve our quality of life? Thank you so much for listening to me patiently. Now I will brief you as to how we are going to proceed in our webinar. अभी आप सुनेंगे recorded video of Swami Raj Vibhuji, which will make you understand how we are going to come out of our current health problems and lead a medicine-free life. Then we will be inviting somebody live who has been a part of Ashtang Chikitsa and how he or she has benefited by it. Of course, we will share the program details, and at the end of the webinar, Swami Raj Vibhuji will be coming live himself to answer your questions. तो देर किस बात की, लिख डालिए आपके problems along with the contact number so that I can take up the questions, something which is bothering you day in and day out, and you're not getting any permanent relief. Namaste, and over to Anil ji to share the video. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example
and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा. उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी. लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो करेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, and he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर brittle हो गई, कमजोर हो गई हैं, porous हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not
the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtang Chikitsa. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always sharira. Both body and mind complex is called as sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं. आप लेना नहीं चाहते हो. Your body doesn't want to. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it?
What do? You do long exhalation. Oof. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही situation मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी. आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बंद तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to: a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है? तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya, or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion.
सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार। सपोज योर वन हैंड बिकम्स लॉन्ग, द अदर हैंड रिमेन्स शॉर्ट। एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया। विल यू गेट जॉइंट प्रॉब्लम इन वन ऑफ द शोल्डर्स? आपको एक शोल्डर में जॉइंट प्रॉब्लम आएगी ना? सो इफ यू हैव वन लेग अ लिटिल लॉन्गर देन द अदर लेग, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you'll get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. At muscles, at joints. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना? वहां पे सो डिसअलाइनमेंट, इफ यू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट इवन वॉक स्ट्रेट. द वे वी आर सिटिंग, द वे वी आर लिविंग आवर लाइफ, वी डोंट इवन सिट स्ट्रेट. कितने लोग सीधा बैठते हैं? यू ऑलवेज टेक अ बैक रेस्ट, इजंट इट? सो देयर इज ऑलवेज, देयर विल बी, इफ यू डोंट यूज योर बॉडी प्रोपोर्शनेटली, देयर विल बी डिसअलाइनमेंट. और आपकी जॉइंट प्रॉब्लम डिसअलाइनमेंट की वजह से भी हो सकती है. देयर आर थ्री बेसिक डिसअलाइनमेंट दैट हैपेंस इन द बॉडी. 3 बेसिक डिसअलाइनमेंट है. नाभि, योर नेवल कैन गेट डिसअलाइंड, वी कॉल इट धरण. योर चेस्ट कैन गेट डिसअलाइंड, आपकी छाती डिसअलाइन हो सकती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कौड़ी. एंड योर लेग्स कैन गेट डिसअलाइंड, आपके जांघें डिसअलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा है ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, Corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of Cowdy or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें, जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो? सांस रोकी आपने? इवन इफ यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ, what is the basic key? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है, वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go. Let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest.
अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण मीन्स डेंसिटी. इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार. डेंसिटी, इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? बट पीपल इनटू स्पोर्ट्स एंड वेट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, दे आल्सो गेट डायबिटीज, दे आल्सो गेट हार्ट अटैक. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड. कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस एंड ट्राई टू पुश योर लेफ्ट पाम वेरी हार्ड. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ ऑफ पुशिंग? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ. यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ बिहाइंड. करके देखिए दोबारा. अगेन डू इट अगेन. सी, पुश इट हार्ड. यू होल्ड योर ब्रेथ. सांस रोकते आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ, वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, तो ये भार आप उठाते हैं. सो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यू कांट लिफ्ट वेट without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and body building happens, isn't it?
So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally, your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also, छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे कि मूवमेंट होती है. There are junctions, muscle and nerve junction, muscle and bone junction, two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में, lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body.
So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्म, बेटर सेल्यूलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्यूलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म, अष्टांग चिकित्सा में, देयर इज अ पार्ट इन अष्टांग चिकित्सा, देयर इज अ पार्ट कॉल्ड एज अंगन्यासा एंड मर्म विन्यासा, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movements, you do function. काम होता है ना. So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी: material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of this word called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वात? मूवमेंट. वात ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट? इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए, हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So, वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of वात दोष, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh?
there is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing Kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पलकती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now being busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics.
And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You will feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose. In Prana Shakti diagnosis, यही Prana Shakti diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do Prana Shakti diagnosis. And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक module सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then
you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. Now I would like to invite Jaya Rotela Singh ma'am to please share her journey of Ashtanga Chikitsa. I'll just put her on spotlight. Thank you so much, Jaya ma'am, for joining us today evening. Thank you, ma'am. Thank you so much. And good evening to all the people who are attending this webinar. Let me share my experience related to Ashtanga Chikitsa. You know, I joined this program in the month of December. I think I've mentioned earlier also. Now, let me tell you that, you know, I have been facing a lot of problems for a very long period of time. बहुत सालों से मुझे प्रॉब्लम थी. अप्रोक्सीमेटली 2007 में मुझे थायराइड डायग्नोज हुआ था. मैं तब से थायराइड की मेडिसिन ले रही थी. एंड इवन आफ्टर दैट, यू नो, आई वेंट थ्रू वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ विच एवरी टाइम माय, यू नो, हेल्थ वाज डिटोरिएटिंग. So actually I was looking for something which could, you know, heal me, which could bring me out from all these kind of issues. So, you know, like I did practice yoga, I did practice cardio, everything was practiced by me, but I was unable to come out from the medicines. I just wanted to leave them. Then in the month of November, I think I was just scrolling my Facebook and then I saw this program, this webinar related to Ashtanga Chikitsa. And I attended the webinar at that time. The same, contents which has been explained by Swamiji. These actually appealed, मुझे बहुत ज़्यादा appeal किया इसने और मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया. And मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ. मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी. थायराइड एक प्रॉब्लम था. मेरा पूरे शोल्डर में यहाँ पे काफी पेन था. स्पॉन्डिलाइटिस की शुरुआत थी. डॉक्टर ने बोला कि धीरे धीरे, यू नो, इट विल कम डाउन टू योर हैंड्स. मुझे बैक एक था. मैं बहुत लेथार्जिक फील करती थी. एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं रहता था. लेग्स में पेन रहता था. एंड सिंस बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, आई हैव टू बी वेरी वेरी एनर्जेटिक.
So, when I started this program and I joined this program, and slowly when I started doing all my kriyas, I am telling you, most of the problems got vanished within 2-3 weeks. मेरे शोल्डर का जो ये पेन था, it has totally vanished. ये अब बिल्कुल भी नहीं है. मेरा थायराइड लेवल कम हो गया है. मैं जो 25 mg की मेडिसिन लेती थी वो 12.5 पे आ गई है. मेरा बैक एक बिल्कुल खत्म हो गया है. मैं बहुत ज्यादा एनर्जी फील करती हूँ, काफी एनर्जेटिक रहती हूँ थ्रू आउट द डे. मेरी बॉडी एकदम टोन हो गई है. जैसे हम कार्डियोस करते हैं, योगा करते हैं, वी पुट लॉट ऑफ लेबर, वी एक्चुअली में बहुत सारा पसीना बहाते हैं हम इन सब चीजों को करने के लिए, टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ अ बॉडी. The body has actually toned, it has become totally toned. I mean, I can't explain you my happiness related to it. And the benefits are really, really very good. And I feel that, if you really want to come out of the problems related to all these kind of pain, backache, the spondylitis, cervical, then hair fall. Yes, one more issue was there, hair fall. That has also totally reduced. So you should join this program. You will automatically find the benefit within 3 days. I have felt it. मुझे ये महसूस हुआ है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, और आज की डेट में भी रेगुलरली मैं अपनी क्रियास करती हूँ ताकि मुझे इसका फायदा मिलता रहे. And I hope, and I'm really thankful to the team of Avisa and the mentors who have actually given us training related to the kriyas of Ashtang Chikitsa, as well as Swamiji, who has, launched this program to help the people. Thank you so much. Thank you so much, Jaya ma'am, to spare the time for Avisa and joining us for the webinar. I would now like to invite Neela ma'am to please share her journey of Ashtang Chikitsa. Neela Mistry ma'am. Thank you, Neela ma'am, for sparing time this evening and joining us for the webinar. हाँ, अभी सुन. ओके, थैंक यू वेरी मच नेहा मैम. मैं Thank you ये so much. हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अप्रैल महीने में ये वेबिनार ज्वाइन किया था, और जब से मैंने ये सब क्रिया सीखी है और मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ, तब से मुझे काफ़ी चेंजेस दिखाई देते हैं. मेरे बॉडी में ऐसा फील होता है कि मेरा एनर्जी लेवल जो है वो पहले से बढ़ गया है. जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ, तो कोई भी काम मैं करती हूँ तो मैं जल्दी कर ही नहीं पा रही थी, और कोई भी काम करने की जल्दी इच्छा अगर करूँ तो थोड़ी देर में थक जाती थी, जैसे आधे घंटे में. वैसे अभी मैं रेगुलर कंटिन्यूअस में 2 घंटे अपनी सारा घर का काम वगैरह सब कर सकती हूँ, और एनर्जी लेवल में काफ़ी फ़र्क पड़ा है. फिर एक बैक पेन बहुत होता था खड़े-खड़े काम करने में, तो अभी जो ये कमरबंद का वो जो सिखाया है गुरुजी ने, तो उससे मेरा क्या खड़े-खड़े 2 घंटे आराम से मैं काम कर सकती हूँ. और 3 महीने से मैंने ये जॉइन किया है. 3 महीने से मैं रेगुलर ये जो सीखा है वो सारी क्रियास करती हूँ. तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. और सबने बहुत सपोर्ट किया, सुषमा मैम ने, और फिर आरडी गुप्ता जी जो है, उन्होंने जो भी है मेंटर सब, उसने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है ये सब. तो ये वेबिनार ज्वाइन करके मुझे काफ़ी फ़ायदा लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा फील होता है, और काफ़ी फ्रेशनेस आ गई है. Thank you so much, Neela ma'am. आपने अपनी journey हमसे share की. I'm sure the participants have been enlightened by the current participants of Ashtang Chikitsa who have benefited by it. Now I would like to request Anil ji to please share the program details as the participants are eagerly waiting for the same. Over to Anil ji. Yeah. Thank you, Rachna ji. Just give me a few seconds. Let me share my screen. आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? Okay. Okay, so let's get to know the details of the program. जल्दी से program detail जानते हैं.
जिसके लिए काफी लोग इंतजार कर रहे हैं. लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर दिस प्रोग्राम डिटेल्स. तुरंत इसके बाद 7:40 PM पर स्वामी जी लाइव आएंगे हमारे साथ सभी के क्वेश्चन आंसर के लिए. आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ गाइडेड प्रोग्राम विच इज कंडक्टेड ऑनलाइन बाय ट्रेन्ड कुंभक मेंटर्स. ये एक गाइडेड प्रोग्राम है जो ऑनलाइन जूम ऐप के ऊपर क्लासेस के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, सिखाया जाता है. ओके, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. जैसे आप अभी जूम के ऊपर अटेंड कर रहे हैं तो सेम तरीके से आपकी क्लासेस भी रहेंगे. प्रोग्राम मॉड्यूल्स क्या है? 3 मॉड्यूल्स हैं. देयर आर 3 मॉड्यूल्स, वात, पित्त और कफ, or you can call them module 1, module 2 and module 3. Duration of each module is 21 days or 3 weeks. 3 हफ्ते का हर मॉड्यूल का अवधि है. तो टोटल जो अवधि होती है पूरे प्रोग्राम की वो 9 हफ्ते यानी कि 63 दिन होते हैं. 63 days is the program duration. Now if you see here, it's written 9 plus 1, 10 weeks. एक एक्स्ट्रा वीक क्यों हो गया है? Why 1 week extra? We'll understand shortly. Then there'll be 2 live classes every week, out of which one will be the learning or the main class and one will be the mentoring or the practice class. हर हफ्ते 2 क्लास रहेंगी. एक क्लास रहेगी मेन क्लास, जिसके अंदर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन कर दिखाएंगे आपको क्रिया कैसे की जाती है. और प्रैक्टिस क्लास जो होगी उसमें आपने प्रैक्टिस करनी है. एंड सिंस इट्स अ ऑनलाइन प्रोग्राम, सो यू हैव टू कीप योर कैमरास ऑन. क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है तो आपको अपने कैमरा ऑन रखना कंपल्सरी है. अभी जैसे ज्यादातर लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, बट क्लास के अंदर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कंपल्सरी है, ताकि हमारे मेंटर्स आपको देख पाए. आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? You pay the program fee, and we have a special webinar pricing for people who are still here with us. Then you fill the participant onboarding form, and then you start your classes. पहला स्टेप है आप प्रोग्राम फी पे करनी है और एक स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग है जो हम अनाउंस करेंगे. उसके बाद पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म आपने भरना है और फिर अपनी क्लासेस आपने शुरू करनी है. और मॉड्यूल 1 या वात मॉड्यूल के साथ सभी ने शुरुआत करनी होती है. Total classes, again, module 1 has 6 classes, out of which 3 are learning or the main class and 3 are mentoring or the practice class. So 3 modules into 6 classes makes 18 classes. Total 6 क्लास रहेंगी हर एक मॉड्यूल में और 3 मॉड्यूल्स हैं वात, पित्त और कफ, तो टोटल 18 क्लास हो जाती है. बट इफ यू सी हियर, I've written 18 learning plus 1 customization class. What is this customization class? ये customization class क्या है? जो 19वीं क्लास होने वाली है आपकी, वो हम थोड़ी देर में जानेंगे और समझेंगे. So total engagement becomes 10 weeks instead of the 9 weeks. टोटल जो अवधि रहेगी प्रोग्राम की वो 10 हफ्ते हो जाएगी, क्योंकि एक हफ्ता और जुड़ गया है कस्टमाइजेशन क्लास के लिए, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे. Batch 139th is starting on 17 July, which is a Monday at 6:30 PM. 139वां बैच शुरू होगा 17 जुलाई, जो एक सोमवार का दिन है और 6:30 बजे का समय है. ये इस समय आपका बैच शुरू होगा जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं. मेंटर और प्रैक्टिस क्लास थर्सडेज को रहेंगी, फ्राइडेज को रहेंगी, सैटरडेज को रहेंगी. कौन सा मॉड्यूल आपका चल रहा है उसके अकॉर्डिंग. We'll share all these details in the WhatsApp group as well as in chat here also. So need not worry about it. What is the class experience like? As you must have understood by now, these are live sessions. अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये live classes रहेंगी, live sessions रहेंगे. Mentors watch all the participants and that's the reason you to keep your cameras on. क्योंकि आपको ये mentors ने देखना है, ये आपको फीडबैक देने के लिए कि आप ठीक से क्रियाएं कर रहे हैं नहीं, इसलिए आपको कैमरा ऑन रखना जरूरी होता है. There'll be written instructions in English and हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश भी आपको मिलते हैं और सेशन या क्लास रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं. जो सारी लाइव क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं और अपलोड कर दी जाती हैं आपके कोर्स डैशबोर्ड में, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में और डिटेल में बात करेंगे.
There'll be a lot of extra things also, like mental practices, unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan. ये diet plan नहीं होता है, इसमें diet perspective होता है. स्वामी जी का एक वीडियो मिलता है जिसमें वो बताते हैं आपको खाने को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि खाना आपको सपोर्ट करे, नुकसान ना पहुंचाए. उसके अलावा सिंपल डिटॉक्स प्रोसेसेस रहेंगे और काफी नॉलेज शेयर की जाएगी प्रोग्राम के दौरान. Now before I announce the program fee, if you see on the screen, I've written yearly expenses. These are figures, or this is the money that you may already be spending just to manage the disease that you are into. ये कुछ शायद काफी लोग ऐसा खर्चा कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए, और ये साल भर की मैंने नंबर्स लिखे हैं इसमें. If you see doctor fee, you could be paying around 6,000 to 12,000 every year in the form of डॉक्टर्स फी. डॉक्टर फी शायद आप 6,000 से 12,000 साल का से कुछ पे कर रहे होंगे. देन इफ यू आर इनटू फिजियोथेरेपी, यू कुड बी स्पेंडिंग 12,000 to 30,000 डिपेंडिंग ऑन द सिटी यू लिव इन एंड काइंड ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट दैट यू हैव. मेडिसिन्स may be costing 15,000 to 30,000. If you add all of these, 33,000 to 72,000, many of the people may already be spending just to manage the disease, not cure it. 33,000 से लेके 72,000 शायद काफी लोग इतना खर्चा कर रहे होंगे अपनी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए. और जो साइड इफेक्ट्स है एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स पे, वो हम सभी को पता था, उसकी ज्यादा बातें हम यहाँ नहीं करेंगे. मैंने ये नंबर्स क्यों आपको बताए हैं, ताकि इसके बाद जब आप फीस देखेंगे, जो आप ये अष्टांग चिकित्सा प्रोग्राम की फी देखेंगे, तो आप जानेंगे कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत और बिल्कुल ही नेचुरल तरीका है. बिकॉज आप शरीर में बाहर से कुछ नहीं डाल रहे हैं, कुंभक इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ब्रेथ इस्तेमाल कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. एक चीज और जरूरी है सभी के साथ शेयर करने के लिए कि ये किन लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है, ताकि ये क्लियर हो सके ये किन लोगों के लिए है. इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो हु दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर, सो दैट इट बिकम्स क्लियर हु दिस प्रोग्राम इज रियली फॉर. This program is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. I talk to a lot of people, and many of them say that they don't want to wait for so much time. If we can give some medicine, something which can cure them instantly, कुछ ऐसी दवाई अगर उन्हें मिल जाए कि जिससे वो एकदम बहुत जल्दी आराम आ जाए, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है. This is not like that. This therapy is not like that. The problems that you are into did not get inside your body overnight. So it will not go overnight also. आपके शरीर में जो दिक्कतें आई हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो रातों रात नहीं आई हैं, इसलिए रातों रात जाएंगी भी नहीं. अगर जा रही है रातों रात, तो वो लौट कर भी वापिस जल्दी आती है. बिकॉज अगर आप एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं, तो उसमें आपको ऐसा दवाई कुछ ऐसी इसमें मिलने वाली नहीं है आपको. And this is not for people who are not ready to work on their body. ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने शरीर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डेली 80 से 90 मिनट का समय आपको अपने शरीर पर देना होगा. You'll need to invest 80 to 90 minutes every day to do the daily kriyas. So if you do not have this kind of time, then this therapy is not for you. अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि अपने शरीर पर इतना समय दे पाए, लगा पाए, तो ये आपके लिए नहीं है. एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर इम्पेशेंट. वी अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर इनटू डिजीज एंड स्पेशली द क्रॉनिक एलिमेंट्स, देन द पेशेंस गोज डाउन, बट स्टिल फ्रॉम आवर साइड वी हैव टू से दिस, दैट दिस इज नॉट फॉर पीपल हु आर इम्पेशेंट. आपको धैर्य रखना होगा. एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ फ्री ट्रीटमेंट और जस्ट सम टिप्स. मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा इस पॉइंट को. मोस्ट ऑफ यू हैव कम बिकॉज यू सॉ एन एड ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड यू रजिस्टर फॉर दिस फ्री वेबिनार. वी एडवर्टाइज दैट द वेबिनार इज फ्री बिकॉज इट्स एन इंट्रोडक्शन टू अष्टांग चिकित्सा. बट अ लॉट ऑफ पीपल मिसअंडरस्टैंड दैट द ट्रीटमेंट इज फ्री. So they misunderstand the webinar with the actual program of the 9 weeks. So we want to make it clear that this is not a free treatment. हम ये क्लियर करना चाहते हैं, ये फ्री ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि जो वेबिनार अभी आप अटेंड कर रहे हैं वो फ्री है, जो हमने एडवर्टाइज किया था फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर. ट्रीटमेंट जो है 9 वीक से वो फ्री नहीं है. तो ये क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोगों को
एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बाद में हमसे लड़ाई करते हैं, ठीक है? तो प्लीज डोंट फाइट विद मी, दैट्स व्हाई आई एम क्लियरिंग दिस पॉइंट। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर सम टिप्स। आप देखेंगे इस पूरे प्रोग्राम में कोई टिप नहीं दी है स्वामी जी ने, राइट? वो देंगे भी नहीं, बिकॉज टिप्स से कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। अगर टिप से सोल्यूशन मिलता होता तो आप देखेंगे यूट्यूब पर सैकड़ों सैकड़ों हजारों लाखों भी हो सकता, कह सकते हैं, वीडियोस है। हर कोई एक्सपर्ट है यूट्यूब के ऊपर, कुछ ना कुछ टिप्स दे ही रहे हैं और आप शायद कुछ फॉलो भी कर रहे हैं काफी। बट टिप से काम नहीं होता है, इसीलिए वेबिनार में टिप नहीं दी जाती है। ये कोई होलिस्टिक तरीका, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका तरीका अलग होता है, वो अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस किया जाता है। तो अगर आप टिप्स के लिए या फ्री ट्रीटमेंट के लिए अटेंड कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मिलता क्या है, व्हाट ऑल यू गेट इन दिस प्रोग्राम? फर्स्ट पॉइंट, प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन। ये इस थेरेपी का जादू है, दिस इज द मैजिक ऑफ दिस थेरेपी। व्हाई वी कॉल इट मैजिक? बिकॉज दिस प्राण शक्ति डायग्नोसिस फाइंड्स द रूट कॉज, ये बीमारी की जड़ पता लगा पाता है। और ये बहुत ही यूनिक डायग्नोसिस है। It's a very unique diagnosis, and which is a non-medical diagnosis, and it's an online diagnosis. Now, both the things may sound very strange to you. ये काफी विचित्र सी लगेंगी आपको चीजें कि ये ऑनलाइन कैसे होता है और ये नॉन मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है। बिकॉज वी यूज टू गोइंग टू अ डॉक्टर, गोइंग टू अ डायग्नोस्टिक सेंटर, गिविंग अ सैंपल ऑफ यूरिन, ब्लड, getting scanned, getting x-rays, MRIs, what not. So this is none of that. ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आई जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ इट इज डन। फर्स्ट ऑफ ऑल, you'll get a link to a online form in which you'll be asked to do some experiments on your breath and on your emotions, and you have to record those in the form. Second, you'll be writing about your problems, your health issues in detail in the form. Third thing that you'll be doing is you'll be uploading your selfie photograph, shoulder and above, in which the face should be clearly visible and there have to be no specs on the eyes. आंखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए उसमें, और लेडीज के केस में कोई मेकअप भी नहीं. In case of ladies, no makeup also. So that selfie photograph has to be uploaded in this Pran Shakti diagnosis form. When these three things reach Swamiji, he is able to determine what force has become weak due to which you landed into these issues. If you remember the video part where Swamiji talks about the 84 forces, अगर आपको याद है 84 फोर्सेस की बात करते हैं स्वामी जी वीडियो के अंदर, जो अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, तो कौन सी फोर्स वीक हो गई है जिसकी वजह से आप करंट अपनी जो हेल्थ कंडीशन है, हेल्थ प्रॉब्लम है, उसमें आ गए हैं, ये स्वामी जी पता कर पाते हैं प्राण शक्ति डायग्नोसिस के आधार पे. ओके, सो ये अपने आप में एक यूनिक डायग्नोसिस है जो नॉन मेडिकल है और ऑनलाइन है. आगे बढ़ते हैं. वीकली वन मेन क्लास ऑफ 60 to 90 मिनट्स. हर हफ्ते एक मेन क्लास होगी 60 से 90 मिनट की. वाई 60 to 90? 60 to 60 is the actual duration. Then we take up question. Your mentors will invite all the participants to ask their doubts and question. आप अपने क्लास के बाद अपने जो मेंटर्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं. तो उसमें 20 से 30 मिनट और लग सकते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि 60 to 90, 60 एक्चुअल क्लास एंड देन maybe 30 minutes for the question answer session. Third point, weekly one practice class, same 60 to 90 minutes. Online course access for 6 months. ये online course access होता क्या है? What is this online course system? Like I told you that all the classes are recorded and they'll be uploaded to your course dashboard. You'll get a link, you'll get a login ID and password. And when you log into your course dashboard, you'll be able to see all the previous recordings of the classes. Okay, so this access will remain with you for 6 months after the 10 weeks program is over, which is enough time to learn all the kriyas by heart. ये 6 महीने तक आपके पास ये रिकॉर्डिंग रहेंगी और ये इनफ टाइम है जिसमें आप पूरी क्रियाओं को कंठस्थ कर लेंगे, याद कर पाए. Then fifth point is about videos of all kriyas done in the class. आप कोर्स डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं, आपको जो क्रियाओं के वीडियो होंगे वो भी मिलेंगे. ये अलग कैसे? हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लास रिकॉर्डिंग. क्लास रिकॉर्डिंग इज ऑफ द होल ड्यूरेशन ऑफ 90 मिनट्स.
But these are small videos of all kriyas. Some kriya may take 2 minutes, some may take 5 minutes to watch, some may take 10 minutes. So you don't have to watch the whole 90 minutes of the class just to see how a kriya is done. तो आपको पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है, एक जानने के लिए कि ये क्रिया कैसे की जाती है। तो आपने सिर्फ उस क्रिया का वीडियो प्ले करना है और आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। रिटन इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश एंड हिंदी, लिखित निर्देश हैं दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में। यू कैन डाउनलोड ऑल्सो एंड टेक अ प्रिंट आउट। मैनी पीपल टेक अ प्रिंट आउट ऑल्सो एंड दे फॉलो फ्रॉम द रिटन इंस्ट्रक्शन, प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन when they're doing their daily kriyas. Then private WhatsApp group to ask your doubts and questions. This is very important. We understand that this is an online program, so it is very different from a face-to-face program. So sometimes the things are difficult, sometimes they're challenging. So we've put in more steps, more support tiers or multiple tiers. So this is the group where you will be asking your doubts in. Like I told you, like just now, that there'll be 2 live classes. जैसा कि मैंने बताया 2 live classes रहेंगी। बाकी जो दिन है हफ्ते में, उस समय जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने आप और कोई डाउट आता है, कोई ऐसा सवाल आता है आपके दिमाग में, तो आपने इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछना है। हमारे मेंटर्स इसी ग्रुप में ऐड होते हैं, वो आपको आपकी डाउट्स को क्लैरिफाई करते हैं, सवालों का जवाब देते हैं और आपको गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से। इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग, एक वीकली बेसिस पर एक प्रोग्रेस ट्रैकिंग फॉर्म मिलता है, जिससे हमें पता चलता है और आपको पता चलता है कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। अगर नहीं हुई है तो हम पता करने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं आप। तो ये बहुत जरूरी है जिस फीडबैक लेना वीकली बेसिस पर। द 9th पॉइंट एंड द सेकंड लास्ट पॉइंट इज थेरेपी कस्टमाइजेशन फॉर ईच पार्टिसिपेंट इन द 10th वीक। नाउ पे क्लोज अटेंशन टू दिस। अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थेरेपी कस्टमाइजेशन फॉर ईच पार्टिसिपेंट इन द 10th वीक। If you remember, the first point I talked about was प्राण शक्ति डायग्नोसिस। अगर आपको याद हो, मैंने बात किया था थोड़ी देर पहले प्राण शक्ति डायग्नोसिस के बारे में, जिससे बीमारी की जड़ पता कर पाते हैं स्वामी जी। Now, in the 10th week, based on this diagnosis, based on your diagnosis, the therapy and the kriyas will be fine-tuned and customized as per this diagnosis that was done and as per your system, as per your body in the 10th week. 10वें हफ्ते में आपकी थेरेपी को फाइन ट्यून किया जाता है, उसको कस्टमाइज किया जाता है आपके डायग्नोसिस के आधार पर 10वें हफ्ते में। नाउ वन क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड, व्हाई 10th वीक? व्हाई कांट दिस डायग्नोसिस, व्हाई कांट दिस कस्टमाइजेशन बी डन इन द फर्स्ट वीक? काफी लोगों के दिमाग में शायद आया होगा। ओके, दैट देयर इज अ रीजन फॉर दैट। द बॉडी फर्स्ट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव दिस कस्टमाइजेशन। So what happens in these 9 weeks? तो बॉडी को अगर तैयार करना है इस कस्टमाइजेशन को रिसीव करने के लिए 10वें हफ्ते में, तो 9 हफ्ते में क्या किया जाता है, राइट? इन दीज 9 वीक्स देयर आर प्राइमरीली 3 थिंग्स दैट आर डन। काफी चीजें होती हैं, बट प्राइमरीली यू कैन अंडरस्टैंड बाय 3 थिंग्स। फर्स्ट, द वात, पित्त एंड कफ ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड थ्रू कुंभक थेरेपी। सेकंड, द आपने वीडियो में देखा होगा, सुना होगा, Swamiji talked about the 3 alignments. The body is aligned, the inner thighs, navel, and the chest. These are the structural alignments of the body. So these are, the body is aligned. And the third thing that is done is you are taught controlled exhalation. आपको controlled exhalation सिखाया जाता है। और इसी वजह से अगर आप कपालभाति करते हैं, आपको मना किया जाता है कि 5 से 6 महीने तक आपने कपालभाति नहीं करना है, बिकॉज कपालभाति में फोर्स्ड एक्सहेलेशन होती है। The third thing that you're taught is, the third thing that happens in these 9 weeks is you are taught controlled exhalation, and this is the reason why you are advised not to do the kapalbhati or any kriya that involves forced exhalation. What we are trying to teach you in Kumbhak therapy is controlled exhalation, because controlled exhalation is the basis of Kumbhak therapy, right? So that's the reason the customization is done in the 10th week. Just like before sowing the seeds in the field, you prepare the field first. So same way the body needs to be prepared to receive this customization.
10th and the last point is there's an extra 30 days of free support after your 10 weeks of the program is over. Why 30 days we give? Because many participants, they miss their classes, maybe due to some illness, due to some function in the family, or maybe they're traveling, whatever reason. So still 30 days after the program is over, we support each and every participant. Even after these 30 days are over, we shift all our participants, all our students into the Telegram group whosoever wants to remain connected with us. So we don't leave you even after these 30 days also. Okay. Now, program fee for Ashtang Chikitsa, which a lot of you are still waiting for, 14,500 is the normal fee, including all the 10 points I talked about. But like I promised you in the beginning, there's a special webinar pricing. Let's have a look at it, what it is. Just 6,500 for the complete 18 classes, customization 19th class is the customization class, all the class recordings, the support in the WhatsApp group, the diagnosis, the customization, 30 days of extra, all inclusive. This has been made so affordable that most of the people will be able to take advantage of this. Now, how to enroll? Step 1 is to pay the program fee. पहला step है program fee pay करना. Step 2 is to post the payment receipt in the WhatsApp group. Step 2 रहेगा आपने जो पेमेंट की है उसकी रिसिप्ट WhatsApp ग्रुप में पोस्ट करना. थर्ड स्टेप इज टू फिल द पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म जो आपको मिलेगा. Then step 4 is to join the class WhatsApp group where you will get daily support, which I just talked about. Step 5 is to start attending classes to learn Ashtang Chikitsa. Simple 5-step process and you are enrolled. Payment methods we'll share in the chat as well as in the WhatsApp group also. Now, this is the last slide of my presentation. And I'd just like to stop here and talk about the super team that will be at your service. And mind you, we don't call ourselves the super team. This label has been given to us by our participants because the kind of support that they get, they started calling us a super team. You'll also experience it if you enroll in the program. Now, we have Rachna Shrival Bothra, who's the program director, and she is the host of this webinar that you are attending right now. Shalini Bhagwat, she is the class manager. She takes care of all the batches, the class timings, which mentor to assign to which batch. She takes care of all that. Then Ashwini Kumar, he is the IT manager. Enrollment in charge, she's Neha Upadhyay. She is the person who you will be talking to the most before starting your classes. We have a lot of mentors like Sandhana, Radhi Gupta ji, Soni, Aruna, Neena, Meera, Sushma, Manvi, Surya Pratap. We have a lot of mentors because we need to pay attention to each and every participant. Because like I said earlier also, this is an online program. We understand that things may be challenging, but like I told you, this is the 139th batch. We've trained more than 3,500 people in the last 23 months. So we are experts at online therapies, and it's our responsibility to make you do the kriyas correctly. So that's why we have a proper team of mentors. Then WhatsApp admin, Anil Jha, that's me. I'll be answering your questions if they are not taken by Swamiji live right now after this slide of mine, after I finish my part. If your question is not taken by Swamiji, or if it is not answered, please don't feel bad. Please do not worry. Please post the same question in the WhatsApp group, and I'll answer each and every question. No question will remain unanswered. So don't worry and don't feel sad if your question is not answered by Swamiji. Then we have the technical team. Himanshu Reddy, he is the person who uploads all the class recording to the course dashboard. He uploads all the written instructions. He'll help you with installing the app on your mobile device so that you can watch the recording on your device or phone also. And then we have a separate personal support team, which comprises of Anita ji, Ankana, Kavita. These will be the people who will be giving each participant telephone call. They'll be calling each and every participant during the course of the program
to ask, to find out, to know that your program is going on fine or not, if you're facing any problem. So we have a proper team of personal support, executives or team members. So you see, it's a proper team here. So you need not worry that how will this program be done. And like I said, that this is the 139th batch. So don't worry, we are not doing it for the first time. And with this, I come to the end of my presentation. I hand over the presentation, the webinar back to Rachna. Namaskar and thank you. Thank you so much, Anilji, for sharing with us the program details. Now we will be taking up the questions. So anybody who has not written down the questions in the chat can do so. Swamiji will just be joining us in another 2 minutes. Meanwhile, I'll just read the questions, and whatever is possible by me, I'll definitely answer. Okay, so Manjari ma'am is talking about too much of restlessness. I think ये तो problem हम सभी के साथ है. Too much of restlessness, frequent urination with very less quantity. So I don't know, Manjari ma'am, if you have got your sugar and kidney checked, that why this frequent urination with very less quantity. So too much of restlessness, I think this problem can definitely be solved by Kumbhak, because Kumbhak not only works on the physical body, it works on the mind as well and makes you a little more stable. So that would be the answer for your restlessness. And as far as the frequent urination and with very less quantity is concerned, I don't know whether you have got a checkup done, but which you need to. Rest I hand over to Swamiji since he's joined in. So we will take up the questions. Thank you so much, Swamiji, for joining us. Namaste and good evening. So Manjari ma'am, as I was just explaining it to her, too much of restlessness, frequent urination with very less quantity. Okay, just a sec. Yes, you can unmute yourself now. So restlessness, one of the reason why too much of restlessness is happening. Now this is pretty common with many people. Why this is common? Because the metabolic system of your body, the metabolism of your body is not proper. And this is happening with most of the people. ज्यादातर लोगों के साथ में उनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, ये हो ही रहा है. So there are two aspects to it. See, your body functions on a certain ecosystemic pressure. आपका शरीर जो है ना, वो एक प्रेशर पे काम करता, जिससे कि आपका बॉडी कोई ना कोई कंपल्सिवली कोई चीज करता है. दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज माइंड. द इकोसिस्टमिक प्रेशर ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज माइंड. Right. The moment your metabolic system gets into problem, ये कैसे पता चलेगा कि मेटाबॉलिज्म खराब है? ये कैसे कोई आइडिया, मतलब इसका कोई प्रूफ हो सकता है? Just look at all the disease that is rising up or going up. Diabetes, metabolic disorder. Thyroid, metabolic disorder. यूरिक एसिड बन रहा है बॉडी के अंदर, metabolic disorder. Arthritis related to metabolic disorder. Autoimmune disorder starts from metabolic disorder. तो metabolic disorder जब भी आपके बॉडी में आएगा तो आपके बॉडी का फंक्शनिंग जो है डिसरप्ट होता है, कामकाज जो है ना वो रुकता है. और क्योंकि शरीर अपने कामकाज को रोकना नहीं चाहता,
तो आपके शरीर में एक सिस्टम चालू होता है जिसे कहते हैं एड्रीनल ओवर एक्टिविटी। उस रिस्क को खत्म करने के लिए एड्रीनल ओवर एक्टिविटी होती है, जिससे एंजाइटी आती है। एड्रीनल ओवर एक्टिविटी में वो करेगा क्या, आपका शरीर, जैसे कि कोई भी चीज आपके शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ठीक से नहीं जा पा रही। सपोज कीजिए लिवर में वो मेटाबॉलिज्म होता वो नहीं हो पा रहा, और ब्लड में आपके मेटाबोलाइट्स जाके सारे बॉडी में फैलने चाहिए, फिर रीजनरेशन चाहिए बॉडी को, वो नहीं हो पा रहा। तो एड्रीनल ओवर एक्टिविटी क्या करेगी, ब्लड हार्ट के रेट को बढ़ा देगा, ताकि उसके प्रेशर से सारी चीजें, ब्लड का फ्लो थोड़ा ठीक हो सके और सारी चीजें पहुंच सके। आपके बॉडी में ये चीज एंजाइटी के रूप में एक्सपीरियंस होती, और जैसे ही आपके बॉडी का पूरा सिस्टम में कोई चेंज आएगा, आपके माइंड में वही तड़पड़ाहट जो है, जैसे किसी चीज को आपने रोक रखा तो तड़पने लग जाता है, तो वही आपके शरीर के अंदर ये तड़पड़ाहट और के माइंड में ये अनईजीनेस आपको फील होता है। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो क्यों रहा है? तो पहली बात, आप रिस्क फैक्टर ह्यूमन बीइंग के हमने बढ़ाए। जैसे कि आप केमिकल डालते हैं, अगर फूड डालेंगे, भोजन डालेंगे ना, तो आपका बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पांस देगा, उसको पचाने का काम करेगा, एसिमिलेशन का, डाइजेशन का काम करेगा। लेकिन जैसे ही फूड के अलावा कुछ भी डालेंगे तो बॉडी उसको खतरा ट्रीट करता है। तो बचपन से आपने कितनी दवाइयां खाई होंगी, और हर दवाई जब आप, हर एक गोली जब आप लेते हैं तो आपका शरीर रिस्क में आ जाता है, क्योंकि वो आपका भोजन नहीं है। ये शरीर दो ही तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, या तो भोजन के लिए ये मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स देगा, या ये गलत चीज जो भी भोजन के अलावा कोई चीज है उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स देगा। तो आपका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कम आ रहा है, क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आपका फूड हो, फूड में क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, उसको भी आपका शरीर खतरा ट्रीट करता है। तीसरा, एनवायरनमेंट हमने खराब कर दिया। एनवायरनमेंट हमारा जो है वो हमने गलत, उसके इंग्रेडिएंट्स गलत कर दिए, तो आप सांस ले रहे हैं तो भी आपका शरीर खतरा फील कर। अब ये तीन चीजों के कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जितनी चीजें बताई ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था, वो बढ़ रहा है। और उसके कारण, क्योंकि शरीर उसको ठीक करने की कोशिश करता है, तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है, जो एंजाइटी के जैसे आपके बॉडी में फील होती है। और एंजाइटी ही नहीं, स्लीपलेसनेस यानी नींद नहीं आ पाना, चैन नहीं आना अंदर से, खुशी नहीं आना अंदर से, सेटलमेंट नहीं होना अंदर से, ये सभी चीजें जो है देखेंगे, बहुत ऐसी प्रॉब्लम, मेंटल डिजीज दुनिया का सबसे बड़ा एपिडेमिक हो चुका है, मगर उसका कोई इलाज नहीं। दवाई खा के किसी मेंटल डिजीज का इलाज नहीं होता। तो अब क्या करना है, क्या एंजाइटी ठीक हो जाएगी? 100% ठीक हो जाएगी एंजाइटी ठीक। क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये आपके शरीर की शक्ति है। तो आपके शरीर की झेलने की शक्ति, तीन चीजें बता रहा हूं। मेटाबॉलिज्म आप ठीक करोगे, यानी कि आपका डाइजेस्टिव या मेटाबॉलिक हीट बॉडी में ठीक से लेके आना है, और बॉडी में फ्लो, ट्रांसपोर्टेशन ठीक करना है। तो ये कैसे करेंगे? अंदर ही अंदर कैसे करेंगे? अगर आप अंदर ही अंदर अपने शरीर में एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाना चाहते हैं, तो अगर अंदर प्रेशर जनरेट करेंगे एक तरीके से, एक लय में, अगर अंदर प्रेशर, बॉडी के अंदर प्रेशर जनरेट करेंगे तो फ्लो होने लग जाता है। दूसरा पार्ट ये है कि बॉडी की टॉलरेंस बढ़ती है। तो ये देखिए, आप एनवायरनमेंट ठीक नहीं कर सकते, भोजन कितना आप ठीक कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो मिल रहा है वही खाना पड़ेगा आपको आखिरकार। मेडिसिन से आप बच नहीं सकते। तीन चीजें, तो ये तो आपको नुकसान कर रही है, तो उस नुकसान से कैसे बचें? अगर आपके बॉडी का टॉलरेंस अच्छा होगा तो आप देखेंगे कि इसका नुकसान, यानी मेडिसिन का साइड इफेक्ट, फूड का जो साइड इफेक्ट आता है, बॉडी इसको फेंकने लगती है, एलर्जिक हो जाते हैं। आईबीएस आजकल बहुत हो रहा है, और फूड एलर्जीज बहुत हो रही हैं, ग्लूटेन एलर्जी हो रही है, इस तरीके की चीजें, क्योंकि आपका शरीर इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो अगर टॉलरेंस बढ़ जाएगा आपके बॉडी का तो एक्सेप्ट होगा। टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? एक एग्जांपल लेके समझिए कि वेट कैसे उठाते हैं आप, कोई टॉलरेट कैसे करते हैं कोई भी वेट। तो आप 10 किलो का वेट उठा के देखिए, आप सांस रोकते हैं। अगर 20 उठाना है तो टॉलरेंस बढ़ाना है, तो आपकी सांस रोकने की क्षमता बढ़नी चाहिए, तभी आप टॉलरेट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो वो कुंभक
वापस आ जाते हैं, कुंभक से ही टॉलरेंस बढ़ेगा। और तीसरी चीज, आपके इम्यून फैक्टर को बैलेंस करना पड़ेगा, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स अच्छा करना पड़ेगा, टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई धक्का देता, पुश करता गिराने के लिए, तो ये सारी चीजें एक ऐसी फोर्स है आपके शरीर के ऊपर जो आपको गिरा रही है ना। जैसे एक वायरल इन्फेक्शन होता है, बाहर से वायरस आया आपके बॉडी में, आपके बॉडी इसको झेल नहीं पाया तो आप इन्फेक्शन में आ जाएंगे। तो वैसे ही जैसे गिराने जैसा है, तो आप बचा के कैसे रखेंगे अपने आप को, अड़े कैसे रहते हैं, सांस रोक के अड़े रहते हैं। कुंभक आपकी इम्यून सिस्टम को बैलेंस आउट करेगा। ये 3 चीजें करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ से एंजाइटी चली जाएगी, आपके बॉडी की फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मेंटल डिजीज का जहां तक मैंने बात किया, ये इकोसिस्टमिक प्रेशर है जो बॉडी को और आपको कुछ करने पे मजबूर करता है, वो उसका प्रीकर्सर कुंभक ही है। जब आप माइंड बोलते हैं तो माइंड का फंक्शनिंग कुंभक के थ्रू ही होता है, या प्रेशर ग्रेडियंट में होता है, और कुंभक उसको 100% ठीक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Kavita Singh ma'am talks about only side effects from medicine. साइड इफेक्ट फ्रॉम मेडिसिन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, योर टॉलरेंस हैज टू बी इंक्रीज। देखो, मेडिसिन खाएंगे तो साइड इफेक्ट तो होगा ही। इनफैक्ट मेडिसिन अगर आप सच में देखें तो एंटीबायोटिक अगर आप साइड में रखें तो एक ही मेडिसिन है जो काम करती है, वो है आपका पेन किलर। ठीक है ना, और तो कोई मेडिसिन काम नहीं करती। आपको लगता है डायबिटीज से कोई ठीक नहीं हुआ आज तक 100 साल में? मुझे एक केस बता दो जो मेडिसिन लेके डायबिटीज से ठीक हो। मुझे 100 साल में एक केस बता दो जो दवाई लेके ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज ठीक हो गया हो। इनफैक्ट हमने वो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बना दिया। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। अच्छा, एक बंदा बता दो जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से ठीक हो गया हो, थायराइड से ठीक हो गया हो। गिव मी 1 एग्जांपल। पूरे 100 साल में आपको बोल रहा हूं, एक एग्जांपल बता दो जो दवाई से ठीक हुआ। कोई भी दवाई से ठीक नहीं। तो पहली बात तो ये, दवाई काम नहीं करती, मैनेज कर सकती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो भी हमने केमिकल से मैनेज करने का पता नहीं क्यों चूज किया। ये सबसे बड़ी गलती थी पूरी ह्यूमैनिटी की, कि हमने केमिकल से ही उसको मैनेज करने का सोचा। हमने किसी और तरीके से इसको मैनेज करने के ऊपर रिसर्च काम ही नहीं किया। एनीवेज, दवाई मैंने कहा कि आप अभी रोक नहीं पाओगे, क्योंकि ये इतना बड़ा आयाम हो चुका है कि आप कहीं ना कहीं फंसोगे। मगर दवाई के साइड इफेक्ट से कैसे बचोगे? ये तो ऐसे ही कहना हुआ कि डंडे तो आपको मारे जाएंगे, मगर डंडे का असर आपके बॉडी पे कम कैसे होगा? अपने बॉडी को मजबूत बना लो। और कोई दूसरा तरीका है? दूसरा तरीका तो है नहीं। तो वो कैसे कर सकते हैं? आपको ऑर्गन मजबूत बनाना। देखिए, आप एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट अटैक आ जाता है, मालूम है आपको? बहुत सारे यंगस्टर्स जा रहे हैं, स्पोर्ट्स के लोग जा रहे हैं हार्ट अटैक से। तो अभी क्या जरूरत है कि हार्ट को मजबूत करना है ना, लिवर को मजबूत करना, किडनी को मजबूत करना, लंग्स को मजबूत करना। ये कैसे कर सकते हैं? आप थोड़ा अंदर का काम करेंगे ना, शरीर के अंदर का काम करेंगे। बाहर तो आप वेट से, रेजिस्टेंस से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अंदर का रेजिस्टेंस कैसे पैदा करेंगे ये बताइए? अंदर का रेजिस्टेंस तो आप सांस रोक के ही पैदा कर सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है। तो अंदर का रेजिस्टेंस एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, है ना, बहुत सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूं। कुंभक इज वेरी वाइड इन टर्म्स ऑफ द साइंस ऑफ कुंभक, बहुत बड़ा है। पूरा आपको कभी 100 साल तक भी बताया जाए तो भी नहीं बताया जा सकता। तो बहुत सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूं। क्या ऑप्शन है आपके पास में कोई? अपने ऑर्गन को मजबूत करना है तो इफ यू वांट टू एम्पावर योर ऑर्गन्स, सो यू विल हैव टू क्रिएट एन इंटरनल प्रेशर, जिसके कारण की एक रेजिस्टेंस आप दे सकें अपने ऑर्गन्स को, जिससे वो मजबूत हो, उनकी फंक्शन बढ़े, उनका कामकाज बढ़े। तो ये कुंभक से किया जा सकता। तो मैं आपको 2 चीज और बता रहा हूं। पहला पार्ट, यू नो, there is a lot of concern about what you call as, आपका बॉडी जो है ना, एंटीबायोटिक्स के लिए भी रेजिस्टेंट पैदा कर देता है, उससे काम ही नहीं करेगा। याद है आपको, डीडीटी पहले कॉकरोच को मारने के लिए इस्तेमाल होता था। आज के टाइम पे डीडीटी पे कॉकरोच डांस करते हैं, तो झेलना सीख गए वो। आपका बॉडी भी एंटीबायोटिक्स ऐसे ही बनती हैं जो 10 साल में काम करना बंद कर देती हैं। आपके बॉडी में रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है।
तो सेंसिटिव बनाना पड़ेगा आपको बॉडी को। एक तो काम ये है कि दवाई भी काम कर सके कम से कम। हमारे पास में ऐसे केसेस आते हैं, कहते हैं दवाई काम नहीं करती। तो अगर आप बॉडी को सेंसिटिव बनाएंगे, है ना, जिसे हम कहते हैं कि अंदरूनी कामकाज को, आपका बॉडी ना क्या कर रहा है, टाइप 2 डायबिटीज क्या, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है, प्रोटीन एलर्जी हो गई, वो क्या है, थायराइड है, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम आ गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। तो अगर आप अपने बॉडी में ये इम्यून सिस्टम को बैलेंस करेंगे, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेंगे, तो बॉडी सेंसिटिव हो जाएगा। सो पीपल डू कुंभक एंड दे से कि नाउ माय मेडिसिन हैज स्टार्टेड वर्किंग। बट मेडिसिन व्हेन वी से, इट्स ऑलवेज अ केमिकल मेडिसिन वी आर टॉकिंग अबाउट। पिछले 100 सालों में बाकी सारे अल्टरनेटिव साइंस को दबा दिया गया, केवल केमिकल केमिकल केमिकल। तो केमिकल मेडिसिन का तो साइड इफेक्ट होगा, हर एक केमिकल मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन टॉलरेंस आपके बॉडी का झेलने की क्षमता आपके ऑर्गन्स की हो जाएगी, तो वो आप उससे बच जाएंगे। सो दिस इज hundreds of cases we have. They say कि we got into some kind of an infection, and what happened, because we were doing kumbhak, we came out of the infection very fast. उन्होंने जो 10 दिन का दवाई लेना था उनको 5 दिन का लेना पड़ा, उतने में वो बॉडी जो है रिकवर भी कर गया, और क्या उसका नुकसान भी नहीं हुआ एंटीबायोटिक का बॉडी के ऊपर। सो द ओनली वे टू एक्चुअली bear that, or to take care of that side effect or adverse drug reaction कहते हैं, you just increase the tolerance of the body, you increase the sensitivity of the body, so that the amount of medicine which will be required will be very less. हमारे यहाँ तो इंसुलिन लेने वाले बंदे आते हैं, इंसुलिन कहते हैं बहुत डोज कम हो गई, 1/4 हो गया, उससे भी कम होगा, कुछ लोग छोड़ देते हैं। So this is kumbhak I'm talking about, which can actually help you come out of the side effect and reduce the adverse drug reaction of your medicine. Next question. Radhika ma'am talks about carpal tunnel syndrome in hands. देखो ये नाम जो आप जितने भी ये सुनते हो ना, ग्रीको रोमन शब्द, ये शब्द बोलने से कोई ठीक नहीं होता। कार्पल टनल सिंड्रोम बोलोगे ना तो कोई भी ठीक नहीं होता इसको बोलने से, और ना एलोपैथी में इसका कोई इलाज है। लेट मी टेल यू क्लियरली, मैं आपको बता रहा हूं कि इसका कोई इलाज नहीं। नाउ इसका इलाज कौन करता है? आपका शरीर कर सकता है। योर बॉडी कैन एक्चुअली हील दिस। वो कैसे कर सकता है? देयर इज नो मेडिसिन इन द वर्ल्ड, नेवर बीन मेड, विच एक्चुअली हील्स योर बॉडी। All the medicine, chemical, non-chemical, natural, can be supportive for the healing strength of your body. आपके बॉडी ही हील करता है लाखों सालों से। लेट मी गिव यू एग्जांपल एंड प्रूफ एंड एवरीथिंग। प्लीज अपनी आंखें खोलिए, इंफॉर्मेशन एज है, ज्यादा दिन प्रोपेगेंडा नहीं चल सकता। आईटी का एज है ना, इंफॉर्मेशन एज है, ज्यादा दिन प्रोपेगेंडा नहीं चल सकता। लाखों सालों से ह्यूमन बीइंग को ये सब बीमारी नहीं होती थी ना। आपको याद है आपकी दादी नानी, किसको थायराइड था, किसको कार्पल टनल सिंड्रोम था, रूमेटॉइड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था? 2 जनरेशन पहले किसी को भी नहीं था ना। डायबिटीज किसको था? हार्ट डिजीज 100 साल पहले किसको था? तो आप ये प्रूफ आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप गूगल करोगे मिल जाएगा। नहीं तो कुछ स्टडीज देख लो, इनू स्टडीज ऑफ कनाडा, इनू कम्युनिटी का स्टडी जो कि एबोरिजिनल से कनाडा के, उनको जैसे ही सिविलाइज किया गया उनको बीमारी शुरू हो गई, उसके पहले कोई बीमारी नहीं होती। तो इंफॉर्मेशन का एज है, प्रोपेगेंडा ज्यादा टाइम नहीं चलता। आपको कहीं ना कहीं, और खास करके आपके शरीर को जब नुकसान हो रहा है तो लोग ढूंढते हैं, ठीक है ना। वैसे तो आपको क्लिनिक के अलावा, एलोपैथी ट्रीटमेंट के अलावा बहुत कम चीजें मिलेंगी ऑल्टरनेट में। आजकल तो फिर भी थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं ना। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि लोग बाग ढूंढते हैं कि मेरे को तो आराम नहीं मिला। कार्पल टनल सिंड्रोम आपको बता दिया, आपको मालूम है क्या होता? तो कभी भी ऐसा कोई शब्द आपको बोल दिया जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोल दिया, अब आपको क्या मालूम रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? क्या आपको मालूम है? तो आप पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इसको समझेंगे ना,
तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इसका क्या मतलब, इसकी कोई कहीं से तो इंफॉर्मेशन मिले इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप सही में काम करेंगे तो आपको फायदा होगा। अच्छा, कार्पल टनल सिंड्रोम या इस तरीके की चीज, कोई भी इस तरीके की चीज अगर आपको बोला जा रहा है, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला जा रहा है, आपके बॉडी में जब मैंने बताया कि आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है, यानी इम्यून रिस्पांस बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक रिस्पांस कम हो रहा है, ये सभी ह्यूमन बीइंग में हो रहा है। जब ये चीज होती है तो आपके बॉडी में रीजनरेशन नहीं होता, डीजनरेशन होता है। देखो आप इतने छोटे थे ना 2 किलो के, उसके बाद में अभी 60 किलो 50 किलो 70 किलो इतना हो गए, यानी आपके बॉडी ने नए नए सेल्स बनाए, रीजनरेट किया, बोन्स की ग्रोथ की, मसल की ग्रोथ की, सब ग्रोथ तो किया ना आपके बॉडी ने। तो आपके बॉडी को मालूम है कि रीजनरेशन कैसे करना है, मगर आज आपका नर्वस सिस्टम रीजनरेट नहीं कर पा रहा, तो टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है आपके हाथों पांव में। अब आपको बोला क्या क्या, ये तो कॉमन आपके एक्सपीरियंस में है ना, मगर आज उसको नाम रखा गया। देखो अंग्रेजों की बड़ी बुरी आदत है, वो जहां जाते हैं ना कहते हैं हमने डिस्कवर किया जी, और पहले जो लोग रह रहे थे ना वो तो बेकार नहीं रह रहे थे वहां पर। तो ये सब ग्रीको रोमन शब्द छोड़िए, आप अपने सिम्टम को देखिए। सिम्टम में क्या है, हाथ पांव में टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो नसें, आपके हाथ पांव की नसें थी, वो रीजनरेट नहीं हो पा रही, तो वो एक इंडिकेशन दे रही है कि भैया ये तो मेरे को डैमेज ही हो रहा है, मेरे को डैमेज हो रहा है, रीजनरेट तो करो। अब मुझे बताइए कौन सी दवाई आपके नस को रीजनरेट कर सकती है? कोई दवाई बनी है दुनिया में जो आपके नसों को रीजनरेट कर सके? कोई दवाई नहीं करती, कोई दवाई नहीं करती। इनफैक्ट सारी दवाई खाने की वजह से आपको ये कार्पल टनल सिंड्रोम आ गया, बचपन से आपने जो दवाई खा लिया, मगर उसकी जिम्मेदारी तो कोई लेगा नहीं। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। आपका परिवार ही बोलता है ना डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। सरकार बोलती है ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वैक्सीन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम आपको मॉल में नहीं घुसने देंगे, एयरपोर्ट में नहीं जाने देंगे। WHO सारे नॉर्म्स लागू कर देता, सारे देश उसको फॉलो करता, मगर कोई ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कोई जिम्मेदारी लेगी? आप दवाई खाते हो, अमेरिका को पैसा देते हो, वो हथियार बनाता है, दूसरे देश पे हमला करता है, वो लेगा जिम्मेदारी आपकी? कोई भी नहीं लेने वाला, क्योंकि कोई दवाई आपके शरीर में रीजनरेशन करती नहीं। रीजनरेशन कौन करता है? आपका शरीर करता है, आपका शरीर करता है। कैसे करता है? एग्जांपल दूं, बहुत सिंपल चीजें हैं समझने के लिए। पहली बात तो ये अंग्रेजों का जो गुलामी वाला हमारे दिमाग में बैठा हुआ है ना, इसको पहले निकालिए। आप एक हाथ से राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी आप जिससे काम करते हैं, उसे एक वेट 5 किलो का वेट रोज 100 बार उठाइए, 100 बार डंबल कीजिए। इस तरीके से एक ही हाथ से करना, दूसरे हाथ से मत करना। क्या आप जिस हाथ से वेट उठाते हैं, क्या उस हाथ में ग्रोथ आ जाएगी? उसकी मसल्स बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ जाएंगे, ये सभी जानते हैं। तो एक बात बताइए, मसल तो बढ़ा दिया ना आपने, वहां पे नर्वस रीजनरेशन भी हुआ ना, मसल रीजनरेशन भी हुआ जब भी, लेकिन वो हुआ कैसे? वेट से कैसे हुआ? वेट कैसे उठाया आपने? पीछे देखिए, पीछे देखिए। वेट उठाने के लिए किया क्या? आपने अपनी सांस रोकने की क्षमता को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। सांस रोक के तो वेट उठाते हैं, नहीं तो उठा के दिखाइए कोई वेट बिना सांस रोके। तो सांस रोका, वेट उठाया, डंबल किया, तो उसका ट्रिगर कहां गया? राइट हैंड की तरफ में गया, राइट हैंड में रीजनरेशन हो गया। कुंभक से ही रीजनरेशन होता है, प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको। आप सोचते हैं कि कोई बहुत डिग्री वाला इंसान कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठकर रिसर्च होता है, ये सब रिसर्च कुछ भी काम नहीं आया पिछले 100 साल में। ह्यूमैनिटी की हालत खराब हो चुकी है। ये अपने दिमाग से ये जो बैठा हुआ है ना, ये डिग्री जो पढ़ते हैं वो रिसर्च करते हैं, नहीं, पढ़ने लिखने वाले लोग थोड़े बेवकूफ होते हैं, कम बुद्धिमान होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, पढ़ लो ऑनलाइन जाके। आप लोग सब बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान है, मगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, विजडम का इस्तेमाल, नॉलेज का इस्तेमाल करने की कोशिश कर। प्रॉब्लम ये है। तो रीजनरेशन आपका बॉडी करता ही है। उसका तरीका क्या है? कुंभक उसका तरीका है रीजनरेशन। अगर कुंभक को आप सही जगह पे लेके जाएंगे, ट्रिगर देंगे आपके बॉडी के अंदर,
तो वहां पे रीजनरेशन होगा। तो नर्वस रीजनरेशन होता है 100% होता, मगर उसकी तरफ में आपके बॉडी का रीजनरेटिव कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, आपके बॉडी की कुंभक कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ये जरूरी है। आप बाकी कुछ भी करो, हम आपको मना नहीं कर रहे, आप जो मर्जी करो, मगर ट्रीटमेंट करो, बाकी सब मैनेजमेंट है, बाकी सब मैनेजमेंट है, थोड़ा टाइम करना चाहिए, ट्रीटमेंट तो करो, अपने बॉडी का रीजनरेटिव स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम ठीक हो जाएगा। सिंड्रोम पता है क्यों लिखते हैं नाम सिंड्रोम? क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है कि क्यों होता है। आपको मालूम है? किसी को मालूम नहीं डायबिटीज क्यों होती है? आपको मालूम है ब्लड प्रेशर क्या होता है? मालूम ही नहीं है किसी को। आई एम टॉकिंग अबाउट द एलोपैथी फ्रेटर्निटी। किसी को नहीं मालूम ब्लड प्रेशर क्यों, किसी को नहीं मालूम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है। तो सिंड्रोम जहां लिखते हैं ना, वो उसका लिखने का मतलब हमें नहीं मालूम क्यों होता। अब जब मालूम ही नहीं है तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे बताइए? लेकिन ट्रीटमेंट जरूर करना। मालूम नहीं है कुछ भी, मगर ट्रीटमेंट सारा ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sudhir sir talks about back pain, neck, shoulder pain, dizziness or vertigo. अब आपको दो तीन चीजें यहां पे, इसको मैं ना 100 तरीके से समझा सकता हूं कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन क्या है, मैं कितना भी आपको ज्ञान दूं, आप ठीक नहीं होने वाले, है ना। गूगल में कितना ज्ञान भरा पड़ा है, आप सब पढ़ते ही हैं, देखते हैं यूट्यूब पर, ठीक नहीं होते ना। तो ज्ञान से ठीक नहीं होता, थोड़ा काम से ठीक हो जाता है, थोड़ा काम करेंगे शरीर पे ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं वर्टिगो बॉडी में क्यों हो रहा है। देखिए एक चीज ध्यान से सुनिए, ह्यूमन बॉडी का डिजाइन कैसा, आपको समझाने की कोशिश कर। ह्यूमन बॉडी का डिजाइन ऐसा है कि इसके ऊपर प्रेशर डालो, जितना इसके ऊपर प्रेशर डालोगे ना और उस प्रेशर को बना के रखोगे, उतना ये टॉलरेंट हो जाता है, उतना ये केपेबल बन जाता है। तो आप अपनी लाइफ में ना आराम ढूंढ रहे हैं ना, सबके सब आराम ढूंढ रहे हैं, शरीर से काम बिल्कुल भी नहीं करना, इसलिए शरीर बीमार हो गया, क्योंकि आप इसके डिजाइन के खिलाफ में काम कर रहे हैं। तो बॉडी के ऊपर ना एक तरीके का प्रेशर जरूरी है, चाहे वो इकोसिस्टमिक एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, बारिश ज्यादा हुई, ठंड ज्यादा हुई, गर्मी ज्यादा हुई, वो भी एक तरीके का स्ट्रेस का काम करती है। अच्छा, इसके अलावा भूख और बॉडी की नीड्स, ये सब स्ट्रेस का काम करते हैं। जब हम बॉडी को ये सब डालेंगे बॉडी के ऊपर ना, उसके बाद वो शांत रह सके। एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। आपको याद है अपने, अगर जिन लोगों को अपने दादाजी याद हैं, जो अच्छी अभी 40-50 के हैं, उनके दादाजी याद हैं उनको, तो उनकी सिचुएशन, उनको बहुत काम करना पड़ता था, थोड़ा फूड, थोड़ा भोजन जुटाने के लिए बड़ा काम करना, बड़ा मेहनत करनी पड़ती थी। मगर उनकी, अगर उनसे आप कभी बात करेंगे ना, तो वो स्ट्रेस नहीं दिखता था, परेशानी नहीं दिखती, एंजाइटी नहीं दिखती थी उनके अंदर, बड़े आराम से बात करते थे। खाने में बहुत जो जरूरी, जो उस मौसम में है, जो खेती में हुआ पैदा, जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से ही मिलता था। आज आप कुछ भी खा रहे हैं, है ना, आज आप जो, आपको जो खाने को मिल रहा है 50 साल पहले नहीं मिलता था लोगों को, बहुत कम। मगर उनकी लाइफ में वो सब झेलने की क्षमता उनकी थी, कैपेसिटी ज्यादा थी, एंजाइटी नहीं होता था, शांत होते थे लोग, अच्छे शांत होते थे, बुढ़ापे में लोग शांत हो जाते थे अच्छे का। मगर हमने वो पार्ट ही हटा दिया, तो बॉडी की कैपेबिलिटी बढ़ाई नहीं, मगर उसको आराम में डालते गए, एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, फूड चेंज कर दिया, केमिकल बम्बार्डिंग कर दी इसके ऊपर। अब ये बेचारा तड़प रहा है। तो क्या होता है, बॉडी का सबसे पहला पार्ट, दो अगर हम देखें मेल एंड फीमेल, मेल के अंदर ना एनर्जी जनरेशन का पार्ट सेंसिटिव होता है, यानी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सेंसिटिव होता है, इसलिए मेल जो है जल्दी डायबिटीज में आ जाता है, जैसे वो खराब होगा डायबिटीज हो जाएगी। फीमेल का प्रोटीन बनाने का पार्ट बड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसको एक बेबी पैदा करना है, प्रोटीन बनाने का पार्ट सेंसिटिव होता है, इसलिए उनको थायराइड हो जाता है बड़ी जल्दी। आज देखेंगे 12-13 साल की बच्चियों को भी थायराइड हो गई। तो दो चीजें आपके बॉडी में मेजरली बता रहा हूं, एक कैपेबिलिटी है, वो क्या है, पहला एनर्जी यानी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, दूसरा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। अब बॉडी ये काम कैसे करता है, जब बॉडी को, अगर ऐसा एक एग्जांपल दूं, बॉडी पे वेट डाल दो और आराम से धीरे धीरे एक लाइन पे चलो, अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो पता चलेगा थायराइड डायबिटीज दोनों ही ठीक हो जाए।
मगर आजकल तो हमें जरूरत नहीं है इस चीज की कि हमारे पर लोड, बल्कि हम तो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ना चाहते, वो भी एस्केलेटर चाहिए, लिफ्ट चाहिए, या थोड़ी दूर भी जाना है तो टू व्हीलर उठा के जाएंगे। तो बॉडी पे हम कोई भी स्ट्रेस नहीं डालना चाहते। लेकिन अगर हमने एनवायरमेंट से अपने आप को कट ऑफ कर लिया और ये सारे डिविएशन कर लिए, तो हमको अपनी बॉडी को तो ट्रेन करना पड़ेगा ना, कि कम से कम वो अपनी फंक्शन ठीक कर पाए। अभी क्या हो रहा है, एक चीज बहुत कॉमन आ रही है कि बॉडी का लेफ्ट और राइट साइड का बैलेंस नहीं बन रहा। स्केलेटल कंफर्ट लोगों का बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि हम गद्देदार चीजें, सोफा और आराम और लेट के सारे काम करना, तो हमारे शरीर को स्केलेटल कंफर्ट नहीं मिलता, हड्डियों का, मसल का कंफर्ट मिलता। तो इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी के अंदर। और इम्बैलेंस कहां दिखेगा? लेफ्ट एंड राइट साइड का इम्बैलेंस कहां पे दिखाई देगा? आपके कान के अंदर एक फ्लूइड है, कॉक्लिया होता है, फ्लूइड है, वो आपके बॉडी का बैलेंस बनाता है, वहां पे दिखाई देता है। वो जब हिलेगा तो आपको डिजीनेस आएगी, वर्टिगो होगा। तो आपके स्ट्रक्चरल बैलेंस को स्थापित करना बहुत जरूरी है। पहला, इसको कहते हैं नले। अगर आप अपने जांघों के इनर पार्ट को बैलेंस कर देते हैं, जो कि कमर की हड्डी के साथ में लगा हुआ पार्ट है, नले, उसको बैलेंस करेंगे तो आपके बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस बनता है। दूसरा बैलेंस जो आपके बॉडी को चाहिए, वो चाहिए जिसे हम कहते हैं कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ बैलेंस। कार्डियक मेटाबॉलिक रिदम आपका ठीक नहीं है, यानी लंग्स और हार्ट का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वहां पे गड़बड़ आ रही है। अभी यूके में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें बड़ी अमेजिंग सा रिजल्ट आया, और वो इतना खतरनाक है। वो रिजल्ट कहता है 70% 10 में से 7 लोगों का कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक नहीं। 70%! आप सोच सकते हो, हर एक बंदे को आगे चल के उसका हार्ट वीक ही होने वाला है। ये बड़ा अलार्मिंग चीज है। ये क्यों ज्यादा हो रहा है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? तो आपके छाती के बीच में नीचे की तरफ जाएंगे तो एक छोटी सी हड्डी निकली हुई है नीचे, जहां पे रिबकेज मिलते हैं, उसको कौड़ी कहा जाता है। और उसका बैलेंस नहीं, बॉडी का उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा, यानी उसका अलाइनमेंट गड़बड़ हो रही है। उसकी अलाइनमेंट जैसे ही गड़बड़ी होगी तो लंग्स और हार्ट का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, उसे कौड़ी कहते हैं। तीसरा जो कारण जो मैंने पहले बता दिया था आपको, मेटाबॉलिज्म सबका ही वीक हो रहा है। वो वीक क्यों होता है? जब आपकी नाभि अगर अलाइन नहीं होती है, नेवल अगर अलाइन नहीं होता है, जिसे धरण कहते थे, लोकल भाषा में धरण कहते हैं, ये सभी का नेवल जो है अलाइन डिसअलाइन है। मैंने जो देखा मेरे एक्सपीरियंस में 70 to 80% लोगों का नेवल डिसअलाइन है। इसको चेक किया जा सकता है। अच्छा, ये 3 चीज बताई मैंने, नाभि, कौड़ी, नले, ये 3 मेजर अलाइनमेंट है आपकी बॉडी को, जो आपको ऑलमोस्ट कम से कम हर वीक में तो करना ही चाहिए। आपकी गाड़ी अगर अलाइनमेंट खराब होता है तो आप फट से अलाइनमेंट करवाने जाते हैं, अगर ऊबड़ खाबड़ जगह में। अपना अलाइनमेंट क्यों नहीं कराता? क्योंकि मालूम ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है ऐसी ह्यूमन अलाइनमेंट करने की। तो हम आपको मॉड्यूल में जो सिखाएंगे उसमें ये तीनों का अलाइनमेंट सिखाएंगे, जो आप रोज कर सकते हैं, जो आप रोज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ऐसी चीजें जहां पे कि अलाइनमेंट की वजह से हड्डियों में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कई लोगों का लेफ्ट साइड शोल्डर में पेन होता है, या फिर वहां पे स्टिफनेस होती है, टेनिस एल्बो होता है, एक पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है, या घुटने दर्द हो रहे हैं तो राइट नी तो पेन कर रहा है, लेफ्ट नी तो फिर भी ठीक है, इसका मतलब अलाइनमेंट नहीं है। तो रीजनरेशन एक पार्ट मैंने बताया, जो कि मेटाबॉलिज्म ठीक करने से होगा। दूसरा पार्ट, आप बॉडी को अलाइन करना बहुत जरूरी है, तभी वो ठीक से फंक्शन कर पाएगा। तो बॉडी का अलाइनमेंट ये बहुत जरूरी है। और तीसरा पार्ट, बॉडी की टॉलरेटिंग कैपेसिटी, फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। ये 3 चीज अगर आप करेंगे, देखेंगे आपकी 98% प्रॉब्लम चली जाएगी। ठीक है? तो वर्टिगो क्यों हो रहा है, और मतलब जैसे अभी किसी ने बताया घुटने में प्रॉब्लम है, तो मैं और तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं घुटने में क्यों प्रॉब्लम है, मगर एक रीजन ये है कि आपकी बॉडी का अलाइनमेंट ठीक नहीं है। दूसरा, रीजनरेशन नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं ग्रीस खत्म होगी, तो ग्रीस तो रीजनरेट होती है ना, तो रीजनरेशन कैपेसिटी खत्म हो गई। अब नकली घुटने लगा लो आप, क्या वो इलाज है? इलाज तो नहीं है वो। अब हार्ट खराब है, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, लिवर खराब है, लिवर ट्रांसप्लांट करा लो, किडनी खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट, यानी ठीक तो करते ही नहीं कुछ।
ठीक तो करते ही नहीं कुछ, तो वो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ आपके बॉडी का। हाँ, बहुत जरूरी होने पे किया जा सकता है, बट कितना आपको सूट करेगा, कितना रिलीफ देगा, या कितना वो, क्योंकि कोई भी अननेसेसरी चीज आपके बॉडी में जब लगाएंगे तो स्टेरॉइड थेरेपी दी जाएगी, आपकी इम्यूनिटी को क्रैश कर दिया जाएगा, किया नहीं जाएगा मगर हो जाएगी। फिर एक प्रॉब्लम, फिर दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की झड़ी लगना बंद ही नहीं होना, इसको कहीं तो रोकना पड़ेगा आपको, और वो आपका शरीर रोक सकता है, आपकी बॉडी रोक सकती है, और कोई नहीं रोक सकता, उस पर आपको काम करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Manjari ma'am talks about how to know if joint pain is due to liver dysfunction. How to know joint pain is due to liver dysfunction? Even if you know, what will happen? ऐसे बोलने को तो आपको बहुत सारी बातें बता सकते हैं, मगर अगर आपको बता भी दिया तो भी आप क्या करेंगे? देखो, जॉइंट का एक पार्ट, ऐसा हम नहीं कह सकते कि जॉइंट पेन केवल लिवर डिसफंक्शन से, मगर एक मेजर पार्ट है। देखो, पुराने जमाने में कहते थे कि सारी बीमारी की जड़ पेट है, गलत नहीं कहते थे, बिल्कुल सही कहते थे। तो व्हाट इज हैपनिंग, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप उस एग्जांपल को क्लियरली समझिए, उसको गूगल करो जाके, और दूसरी जगह पढ़ने की कोशिश करो, आपको वो फिर पता चलेगा कि हाँ, ऐसी बातें, ये बात सच है। तो आपका लिवर आपके बॉडी का दूसरा ब्रेन है। आपका लिवर सब समझता है कि ये मेरा भोजन है, ये मेरा भोजन नहीं। आपके बॉडी में 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है, जिसका पहला पार्ट लिवर पे होता है। 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है, और आपके बॉडी में 7 टिश्यू बनते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 टिश्यू बनते हैं। और 6 लेवल का मेटाबॉलिज्म के लिए 6 मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ चाहिए, जिसे कहते हैं देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। ये 6 स्ट्रेंथ चाहिए बॉडी के अंदर 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म करने के लिए। एक आप वैसे एक एग्जांपल लेके भी अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेल्स और फीमेल्स में 2 चीजें बढ़ रही है। स्पर्म से रिलेटेड इशू मेल में आ रहा है, और एग और ओवम से रिलेटेड इशू फीमेल में बहुत बढ़ा है। तो इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है, आप गूगल करके नंबर देख लो कितना बढ़ रहा है। तो ये शुक्र है, इसे शुक्र कहते हैं। ये शुक्र फॉर्मेशन के लिए ये 6 बल, 6 स्ट्रेंथ्स चाहिए, वो नहीं होगा तभी तो वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये 6 मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं कि वो कमजोर हो ही रहा है, मगर आपका लिवर फर्स्ट है। तो क्या करता है, जब आप भोजन करते हैं तो लिवर जो है उसको चेक कर, गेट कीपर की तरह उसको चेक करता है, इसमें से क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना। ठीक है ना, लिवर ये चेक करता है। अगर सपोज करो आपने आपके भोजन में ये फूड जो आपने डाला उसमें ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीजें, ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो कि आपके बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, जैसे केमिकल डाल दिया आपने, कोई दवाई डाल दी, तो पूरा का पूरा निकालता है आपका शरीर। ठीक है ना, पूरा का पूरा निकालने की कोशिश करता है। तो आप खाते हो 500 मिलीग्राम की मेटफॉर्मिन या फिर पैरासिटामोल, है ना। ये आप फार्माकोलॉजी और फार्माकोडायनेमिक्स में भी देख सकते हैं कि ये होता है, और इसमें कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगा। तो 500 मिलीग्राम की जो पैरासिटामोल खाते हो उसमें से यूज कितना होता है, 2-4 मिलीग्राम यूज होता है। तो इतना ज्यादा क्यों दिया गया आपको, क्योंकि लिवर 495 मिलीग्राम निकाल देगा। निकालेगा क्यों, क्योंकि वो इसको रिस्क मानता है, वो इसको जहर मानता है, मगर इसको ओवरलोड किया जाता है ताकि कुछ निकल जाए। इसे कहते हैं फर्स्ट लिवर बाईपास। जरा गूगल में जाके ये पढ़िए, फर्स्ट लिवर बाईपास। यानी आपने क्या किया, आपने लिवर को थोड़ा सा धोखा दिया, लोड डाला उसके ऊपर, जरूरत से ज्यादा लोड डाला, है ना, टॉर्चर किया ना आपने लिवर को। अच्छा, लिवर को टॉर्चर करने के अलावा पूरे बॉडी को टॉर्चर करना है तो क्या करना पड़ता है, आप लिवर के थ्रू गुजारो ही मत किसी चीज को, सीधा इंजेक्शन डाल दो, आईवी। यानी पूरे लिवर को ही बाईपास कर दिया आपने। यानी ये सेकेंड लेवल ऑफ टॉर्चर है, खतरनाक टॉर्चर। आपकी कोई भी मेडिसिन कैसे काम करती है, रिसेप्टर बाइंडिंग मैकेनिज्म, जबरदस्ती करती है आपके सेल ऑर्गन्स के साथ। इसी जबरदस्ती को अगर आप ट्रीटमेंट कहते हो, ऑब्वियसली सारी दुनिया बीमारी होने वाली है। ऐसा ही है ना। तो लिवर के ऊपर लोड ज्यादा डालेंगे, आपके ऊपर लोड ज्यादा डालेंगे,
तो आप अपना नॉर्मल काम कम कर पाएंगे ना। तो इंसुलिन कहां गिरता है? आपके लिवर में गिरता है। अब लिवर बेचारा केमिकल निकालने में, फूड में से टॉक्सिन्स निकालने में, वो कहेगा नहीं जी अभी मैं ये इंसुलिन का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो थोड़ा लेगा, मैक्सिमम नहीं लेगा। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज भी कहते हैं, क्योंकि इंसुलिन ले नहीं रहा तो आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म लिवर ठीक नहीं करेगा, बॉडी का ठीक नहीं होगा। लेकिन फीमेल्स में ये इंसुलिन ज्यादा ब्लड में पाया जाएगा, अगर मेल और फीमेल दोनों में, तो जहां ब्लड का इस्तेमाल ज्यादा होगा वहां पे इंसुलिन पाया जाएगा ज्यादा, वहां ये ग्रोथ करेगा अननेसेसरी। तो फीमेल्स में जरा गूगल करके देखिए, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बहुत बढ़ रहा है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, यूट्रस का अनइवन ग्रोथ बहुत बढ़ रहा है, इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये वहां पे ब्लड का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ब्लड में इंसुलिन फालतू का पड़ा हुआ है, वो वहां पे ग्रोथ कराता है, जिसे सिस्ट कहते हैं। अंदर शरीर में सिस्ट जैसी चीजें ह्यूमैनिटी में, पूरी ह्यूमन काइंड में बहुत बढ़ने लग गए हैं, और कैंसरस ग्रोथ आप देखेंगे ज्यादा, 12% के रेट से कैंसर बढ़ रहा है। तो लिवर अगर मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करेगा और रीजनरेशन करेगा, तभी तो रीजनरेशन होगा आपके बॉडी में, वरना तो नहीं होगा। जब ये ठीक से काम नहीं कर रहा तो आपके बॉडी में कहीं भी रीजनरेशन ठीक से नहीं होगा। लेकिन आपकी जो कमजोरी है बॉडी की, जो कमजोर पक्ष है, वहां पे असर पहले दिखाई देगा। तो आप मुझे बताइए, एक बीमारी शुरू होती है, उसके बाद वो बीमारी खत्म तो होती नहीं, आप दवाई खाते रहो और दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी, पांचवी हो जाएगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जड़ को तो ट्रीट कर ही नहीं। तो अगर लिवर फंक्शन नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं घुटने ही क्यों, आपके बॉडी में कहीं भी रीजनरेशन कैसे होगा? ठीक से नहीं हो पाएगा। तो एक रीजन तो वो है ही है। अब दूसरा वाला पार्ट है कि इसके बाद सेकंड पार्ट हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बॉडी में, फ्लो ठीक होना चाहिए, ब्लड का फ्लो ठीक होना चाहिए, लिम्फ का फ्लो ठीक होना चाहिए, हार्मोन का फ्लो ठीक होना चाहिए। तो आपके बॉडी में प्रेशर ही नहीं बन रहा। अगर प्रेशर नहीं बन रहा तो बॉडी क्या करता है? प्रेशर बढ़ाता है, इसे ब्लड प्रेशर कह देते हैं, उसको दवाई खा के फिर कम करने लग जाता है। बॉडी जब भी ठीक करने की कोशिश करता है, हम उसे थप्पड़ मार देते हैं। वो फीवर करता है कोरोना का मारने के लिए, हम डोलो खा लेते हैं, पैरासिटामोल खा लेते हैं, फीवर कम कर देंगे। दर्द क्रिएट करेगा, दर्द बंद कर देंगे। उल्टी करेगा, उल्टी बंद कर देंगे। दस्त करेगा, दस्त बंद कर देंगे। हमने तो बॉडी को क्रिमिनल बना दिया, और फिर कहते हैं कि भाई सारी ह्यूमैनिटी बीमार हो रही है। बिल्कुल होगी, आपका फंडामेंटल ही गलत है। बॉडी को क्रिमिनल क्यों बना रहे हैं? इसको तो हमें स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। लाखों सालों से इस बॉडी ने कोई बीमारी नहीं पैदा की, हर बीमारी को ठीक। इसका एक ही काम है हमारे शरीर का, रिजुवनेशन, 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 और दूसरा काम करता ही नहीं। हम उसी को खत्म करते जा रहे। तो लिवर के फंक्शनल प्रॉब्लम से रीजनरेशन, चाहे वो घुटने का हो, चाहे वो हिप का हो, चाहे रीढ़ की हड्डी का हो, चाहे वो गर्दन का हो, चाहे वो और दूसरे जॉइंट्स हो, हाथ के जॉइंट्स हो, कोई भी जॉइंट में रीजनरेशन तभी सही होगा जब आपका लिवर ठीक फंक्शन करेगा। आप देखिए, पूरा शरीर एक साथ में काम करता है। लिवर हार्ट के साथ में काम करता है, हार्ट किडनी के साथ में काम करता है, किडनी लंग्स के साथ में काम करते हैं। एक होलिस्टिक हमारे को अप्रोच चाहिए इस पूरे बॉडी को रिजुविनेट करने का। किसी एक पक्ष को देख के हम ठीक नहीं। आप घुटने लगा के क्या घुटना ठीक हो तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी क्या? एक घुटना चेंज करवा दो, क्या लाइफ अच्छी हो जाएगी? नहीं होती। ऐसा किसी का हुआ नहीं। एक स्टेंट लगा लो हार्ट में, फिर दूसरा लगाओगे, फिर तीसरा लगाओगे, उसके बाद तो गिव अप कर देगा बॉडी, कहेगा कि बस हो गया। तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आपका शरीर मैजिक है, और आप सभी बुद्धिमान लोग हैं। आप अपनी बुद्धि से, अपने तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा हम क्या स्टेप लें। बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स योर बॉडी रादर देन लुकिंग फॉर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये वो फलाना डिमकाना। आप ये देखिए आपका शरीर क्या डिमांड कर रहा है ना? तो जो आपका शरीर बहुत तेजी से डिमांड करता है, बहुत जोर से डिमांड करता है, वही आपका मेडिसिन है। हमको थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा शरीर के प्रति, राइट? तो भी हम इसको अच्छा बना पाएंगे। Okay, Shweta Saxena ma'am, you can ask your question. I've unmuted you.
And anybody else who wants to ask their question, please raise your hands. नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। सर मुझे मतलब हाई बीपी है, ऐसे 189 ऐसे रहता है। फिर मेरे गर्दन में भी बहुत ज्यादा पेन, मैं दवाई लेना नहीं चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, बहुत बहुत आसानी से समझाऊंगा। यहाँ जितने लोग हैं सबको समझना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी कोई मिले तो आप उनको भी समझाइए फिर। अच्छा, बीपी जब हम बोलते हैं तो आप तो बीपी का रीडिंग बता रहे हो, मगर आप मुझे बताइए एक बीपी के मरीज को तकलीफ क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है उनको। तो आप देखेंगे जब भी वो जोर लगाते हैं शरीर से, उनकी सांस फूलती है। सीढ़ी चढ़ेंगे, सांस फूलेगी। कोई काम करेंगे तो ब्रेथलेसनेस होता है, मतलब वो उस काम को करने में ना बहुत तेजी से उनकी सांस फूलने लग जाती है। जो एक्चुअल बीपी के मरीज हैं वो एफर्ट जब भी लगाएंगे, जोर लगाएंगे शरीर से, तो जोर लगाने की क्षमता उनकी बहुत कम होती है, सांस बहुत तेजी से फूलने लग जाती है, और किसी भी प्रेशर को वो सहन नहीं कर पाते। वो प्रेशर चाहे काम करने का प्रेशर हो, चाहे वो मेंटल प्रेशर हो, वो एकदम से मतलब उनका शूट अप कर जाएगा बीपी। कहने का मतलब आप जब भी कोई काम करते हैं तो आपकी काम करने की क्षमता कम हो गई। मगर काम कैसे करते हैं आप? जोर कैसे लगाते हैं? बिना सांस रोके जोर लगा पाएंगे? अगर आप वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं, जुम्बा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, घर के कामकाज करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, चेयर से भी उठते हैं, तो अलग अलग अनुपात में आप सांस रोक के ही कोई काम करते हैं। अगर वो काम करने की क्षमता कम हो गई तो क्या कम हो गया? आपका सांस रोकने की क्षमता कम हो गई। अगर वो बढ़ा देंगे आपका बीपी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम आ गई उसको एड्रेस करना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम क्या हुई कि एफर्ट लगाते हैं, सांस फूलती है। एफर्ट कैसे लगाते हैं, जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं। तो यानी सांस रोकने की क्षमता कमजोर हो गई, उसको बढ़ा लीजिए प्रैक्टिस करके, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आपको ऐसे केसेस बता सकता हूं, आप आश्चर्य करेंगे। हम लोग बीपी का एक प्रोग्राम रन करते हैं, बीपी और हार्ट डिजीज का। जो कुंभक कर रहे हैं उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जो वो हार्ट अटैक आता है उनको, और उनको पता नहीं चलता। ऐसे लोग हैं जिनको 3-3 हार्ट अटैक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 3-4 दिन में आ गए, कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं हुई। बाद में चेकअप कराने गए तो पता चला आपको हार्ट अटैक आया था। ईसीजी करने पे कहा कि मुझे तो कोई सिम्टम ही नहीं है। तो आपको कौन बचा सकता है? इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, आपको कौन बचा? आपका शरीर बचा सकता, और कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि 2 के बाद तीसरा, आजकल ना पहले हार्ट अटैक में शरीर झेल नहीं पा रहा क्योंकि इसकी झेलने की क्षमता खत्म हो गई। लेकिन आप कितने ही हार्ट अटैक झेल जाएंगे अगर आपका वो पक्ष जो कहते हैं उसको टॉलरेट करने का पक्ष अगर स्ट्रांग होगा तो। और ये हमारे कोर्सेस में बड़े लाइव, अभी रिसेंट का एग्जांपल में भी 3 हार्ट अटैक 2 दिन के अंदर आए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो डर के मारे हॉस्पिटल जरूर पहुंच गए, मगर हुआ कुछ नहीं, उनको कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो हमको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां पे है और उसको कैसे ठीक, और आप प्रॉब्लम को ट्रेस करने की कोशिश करें। बीपी का पहले एक बात बताऊं मैं आपको, एक सीधी सी बात बताऊं, ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता आर्टरी के वॉल के ऊपर। ये मॉडर्न साइंस के खिलाफ है। बर्नौलीज प्रिंसिपल है, लैमिनर फ्लो कैन नॉट एक्सर्ट अ वर्टिकल प्रेशर। तो अगर कोई आपको बोल रहा है ब्लड का प्रेशर है तो वो गलत बोल रहा है, वो जानता ही नहीं। ये मॉडर्न साइंस ने प्रूव कर दिया कि ब्लड प्रेशर जैसी चीज, ब्लड का प्रेशर नहीं होता, मगर हर एक टिश्यू में, आपके हर एक सेल के अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर, कामकाज करने के लिए उसको एक प्रेशर चाहिए। दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूं, अगर आपका शरीर प्रेशर नहीं बना पा रहा तो वो बना के कामकाज करवा दो। बिना प्रेशर के काम नहीं होगा आपके बॉडी के अंदर। तो वो ज्यादा इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि अंदर नेचुरली उसकी क्षमता नहीं है। तो वो प्रोटेक्टिव, एक्चुअली ब्लड प्रेशर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, मगर उसको कम कर करके हम हार्ट को कमजोर कर रहे हैं। तो क्या क्षमता कमजोर हो गई? सांस रोकने की क्षमता कमजोर हुई। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप देखेंगे कुछ समय के बाद में, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ब्लड प्रेशर से आपको कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं होने वाला, आपको सारे सिम्टम खत्म हो जाएंगे। ऐसे लोग हैं जो 5-5 मंजिल चढ़ गए, सांस नहीं फूलती उनकी। ठीक है ना? कहते हैं ऐसा तो जिंदगी में पहली बार हुआ, जब हेल्दी थे तब भी इतना नहीं था।
तो क्या ठीक करना है? तो अगर लेकिन आपकी प्रॉब्लम को आप एक काम करें, नीचे चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम। तो क्या कोई उनसे बात करके, आपसे फोन करके बात करके सारी प्रॉब्लम को बताएंगे, फिर मेरे से डिस्कस करके पूछ लेंगे कि कौन से कोर्स ज्यादा सूटेबल होगा, है ना। अगर आपके साथ में मल्टीपल प्रॉब्लम है तो अपना नंबर डाल के नीचे इधर चैट बॉक्स में नंबर डालें, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है पार्ट आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप का उसमें नंबर डालेंगे तो कोई आपको कॉल करके आपकी सारी प्रॉब्लम्स को लिस्ट करके फिर एनालाइज करेंगे कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए सही होगा। हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ना न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम के लिए। Okay, Pragya ma'am, you can ask your question. गुड इवनिंग सर। गुड तो इवनिंग। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि मेरे को विटिलिगो है और जब मैं 10 साल की थी तब से है, और मुझे बीच में डिप्रेशन एंड ऑल दैट इश्यूज भी हुए थे। उसके बाद जब कोरोना आया और आफ्टर द कोरोना मेरा विटिलिगो एकदम से स्प्रेड होना शुरू हो गया, उससे पहले कंट्रोल में था। अभी हालात इतनी खराब है मेरे कि ग्लूटेन अगर मैं एक रोटी खा लेती हूँ तो मेरे सर में खुजली होने लगती है, मेरी स्किन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और फिर वहीं पे दाग आने लग जाते हैं। डॉक्टर जो दवाई दे रहे हैं मैं खुश नहीं हूँ, बिकॉज वो एसिडिक है, स्टेरॉइड्स हैं, और मैंने आयुर्वेदिक भी ली थी, उन्होंने भी एसिड ही बना दिया बॉडी के अंदर बेसिकली। तो मैं अभी क्या, मतलब इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है मेरे पास। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि ये प्रॉब्लम है क्या, फंडामेंटली ये प्रॉब्लम विटिलिगो की क्या होती है, मैं बता देता हूं। जी सर। कॉस्मेटिक चेंज आने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर इसका फंडामेंटल जो रूट कॉज है हम उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप सपोज कीजिए आपकी एलर्जी चली गई ग्लूटेन से, या फिर आपको इचिंग वाला पार्ट खत्म हो गया, या जो आपका बेसिक रीजन था विटिलिगो होने का वो अगर ठीक हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मगर कॉस्मेटिक चेंज आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो रीजन क्या होता है विटिलिगो का? जो एक फंडामेंटल रीजन विटिलिगो का होता है, इसको हम कहते हैं व्यान वायु, व्यान शक्ति, या और एक और चीज हम कहेंगे इसके साथ में व्यान अग्नि। इसका मतलब क्या होता है? व्यान का मतलब क्या होता है? मैं दो तरीके से व्यान समझाऊंगा आपको। पहला व्यान का मतलब होता है व्याप्त, यानी कि बॉडी में चीजों को फैलाना। वो फोर्स जो आपके बॉडी में चीजों को फैलाता है उसे व्यान कहते हैं, ठीक है ना। तो जब व्यान पक्ष कमजोर होता है तो क्या होता है कि चीजें फैलती नहीं है। जब चीजें फैलती नहीं है ठीक से तो स्किन का इशू उसमें से एक पार्ट है जो कि आता है। अच्छा, व्यान को हम समझ कैसे सकते हैं और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? व्यान का मतलब होता है कि आपकी इनहेलेशन, होल्ड और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, होल्ड और एक्सहेलेशन, यानी 5 सेकंड का इनहेल करते हैं तो कम से कम मिनिमम जो आपका होल्ड फैक्टर होना चाहिए ना उसका 4 टाइम्स होना चाहिए, और एक्सहेलेशन इनहेलेशन के 2 टाइम्स होना चाहिए, 1:4:2, तब जाके वो ठीक माना जाता है। अच्छा, व्यान के अलावा एक और पक्ष है आपके बॉडी का जो कि वीक होने से ये विटिलिगो की प्रॉब्लम, या इनफैक्ट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो पाता, वो है नागवायु कहते हैं इसको। नागवायु मेजरली जो है बहुत स्पेसिफिकली आपके स्किन की हेल्थ को कंट्रोल करता है। तो पहला, नागवायु से पहले एक व्यान पक्ष है आपके बॉडी का जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में स्किन का प्राइमरी जो हेल्थ फैक्टर को रेगुलेट करता है वो है नागवायु। तो ये दो चीज अगर आपके बॉडी में वीक हो जाएगा तो ये विटिलिगो या कोई स्किन का इश्यू आता है, और ये कई और कारण से भी खराब हो सकता है। मगर अगर इन दोनों को ठीक कर दिया जाए तो वो रूट को हम खत्म कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम आपको आपके बॉडी को डायग्नोस करते हैं एक तरीके से, जिसे प्राण शक्ति डायग्नोसिस कहते हैं। वो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके एक फॉर्म को फिल करना होता है, और फिर हम एनालाइज करके पता लगाते हैं कि कौन कौन सा पक्ष आपका कमजोर है, और आपको कस्टमाइज प्रैक्टिस उसके हिसाब से एक स्पेशल प्रैक्टिस देते हैं। जिसमें सपोज कीजिए कि ये नागवायु खराब है तो हम नाग कुंभक देंगे आपको, ठीक है ना। व्यान तो इस मॉड्यूल के अंदर बिल्ट है, 3 चीजें सिखाएंगे, अंगन्यास, मर्म विन्यास, कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में 3 पार्ट सिखाएंगे। जो 3rd पार्ट है व्यान क्रिया कुंभक, वो तो है ही है, बिल्ड किया हुआ है हमने,
क्योंकि बिना व्याप्त यानी फैलाने के, अगर फैलावट आपके शरीर में नहीं होगी किसी चीज की, तब तो आपका शरीर काम नहीं कर सकता ठीक से। तो हम स्पेशल प्रैक्टिसेस ऐसे केसेस में देते हैं जिससे कि एटलीस्ट जो जड़ है, जो रूट है, उसको हम क्लियर करते हैं, उसको ठीक करते हैं। स्किन का कॉस्मेटिक चेंज आने में फिर टाइम लग सकता है, मगर आपका अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब आप ये मान के चलिए कि आप ठीक हो ही चुके हैं, केवल वो कॉस्मेटिक चेंज वाला पार्ट एक रह जाता है। सर कॉस्मेटिक उसको भी आने में time मेरा आ तो रहा है, कॉस्मेटिक भी मतलब बहुत स्लो है, लेकिन धीरे धीरे मतलब आ रहा है थोड़ा। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जी जी जी। उसमें टाइम लगा, अगर रूट खत्म कर देना तो वो भी हो जाएगा, मगर थोड़ा टाइम, कुछ लोगों में जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों में ज्यादा टाइम लगता है। Medhaj Swami ji, Demko sir, Swami ji, I you can wanted ask to your ask. question. Yeah, Swami ji, I wanted to ask whether this treatment is. I know Parkinson is not curable. This is for my wife that I've joined the program. I wanted to ask whether this treatment is good for Parkinson as well, because there is body instability and essentially a neuro problem with lack of dopamine. So I am taking medicines, but I'll be grateful if you could respond to my question. Thank you. See, आपको where you should look at is, it is not lack of dopamine. Why your body is not able to produce dopamine? And the only treatment at this point of time is levodopa treatment, which is not a right kind of a treatment. तो सवाल ये नहीं है कि डोपामिन कम है, सवाल ये है कि डोपामिन कम क्यों है। 100 साल के रिसर्च में, पार्किंसन के रिसर्च में, they came to conclusion that it starts from your stomach. और 5000 साल पहले हम ये बात बोल रहे थे। In Ayurveda, we have always been saying why Parkinson happens, urdhva vayu. When the flow factor in your body, in one unidirectional flow factor in your body, नागवायु कह रहे हैं, तो नागवायु, उसके पहले मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो फैक्टर। तो जितने भी वात कफ के मरीज होते हैं उनके बॉडी में फ्लो फैक्टर वैसे ही वीक होता है, और दूसरे कारण से भी हो सकता है। मेजरली कफवात या वात कफ का इश्यू जो है उसमें फ्लो फैक्टर वीक होता ही है। यानी कि बहुत सिंपल टर्म्स में समझिए कि आपने कुछ खाया, आपके पेट से वो नीचे की तरफ में कोलन से निकलना चाहिए ना, वो नीचे की तरफ नहीं जा पाता, तो क्या होगा? जो फ्लो है वो उल्टा आएगा। जो वायु का पुश है ना आपके बॉडी के अंदर, वो उल्टा आता है, और ये देखा गया कि वो उल्टा आने के कारण इट क्रिएट्स एन इंपैक्ट इन योर ब्रेन। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा और सर्च करें। मैं आपको एक बात बताऊं, पार्किंसन 100% ठीक हो सकता है। द ओनली थिंग इज वी आर ओनली ट्राइंग ट्रीटमेंट इन वन वे, सम काइंड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन कैन नॉट ट्रीट पार्किंसन, ईदर आज के मेडिसिन कह लीजिए, टुडेज मेडिसिन, और फ्यूचर मेडिसिन। मेडिसिन विल नेवर बी एबल टू ट्रीट पार्किंसन। लेकिन और इतने आसानी से आप समझ सकते हो, कितने आसानी से? मुझे बताइए, आपका हाथ कांप रहा हो तो कंट्रोल कैसे करते हैं? इतने आसानी से आप समझ सकते हो, करके देखिए। हाथ कांप रहा है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सांस रोक लेते हैं, टाइट कर लेते हैं, कंट्रोल हो जाता है ना। अगर आपके बॉडी को आप कंट्रोल, कंपन को कंट्रोल करना चाहें तो सांस रोक के ही करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, इमीडिएटली कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन क्या होगा? क्योंकि वी हैव बीन ट्राइंग लॉट ऑफ डोपामीन से हमने ब्रेन को डैमेज किया। इफ यू बॉम्बार्ड योर ब्रेन विद डोपामीन, इट इज नॉट गुड। डोपामीन तो एक सर्टेन टाइम में प्रोड्यूस होता है आपके ब्रेन में, उसकी जब जरूरत होती है। अब आप ट्रीटमेंट के लिए डोपामीन, लिवोडोपा ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया, नॉट गुड। सिचुएशन थोड़ी टाइम के लिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि सुधर रही है, उसके बाद और खराब हो जाएगी। दिस इज नॉट ट्रीटमेंट। इसीलिए मैंने कहा ये मैनेजमेंट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या बोल सकते हैं इसको? मैनेजमेंट। इट इज नॉट ट्रीटमेंट। दूसरी बात, सिंपल तरीका भी, अगर इफ यू इंक्रीज द ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर बॉडी बेटर। तो पहले पार्ट तो ये मैंने बोल दिया कि इमीडिएटली अगर क्या करना है, ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, उनका कंट्रोल बेटर हो जाए। दूसरा पार्ट, जो ऊर्ध्वगत वायु है, जो आपके बॉडी में फ्लो फैक्टर रिवर्स हो चुका है, उसको हमको ठीक करना पड़ेगा, अंदर से ठीक करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे रिलीफ मिलेगा अंदर से। ठीक जैसे मैंने बताया, नागवायु खराब हो जाती है उसके अंदर,
तो उसको लेके अगर हम काम करेंगे, और क्या वीक फैक्टर है वो तो हम डायग्नोसिस के बाद बता सकते हैं कि किस वजह से पार्किंसन हुआ। अगर उसको ठीक करना शुरू करेंगे तो आराम मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन एज। अगर एज कम है तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा और पूरे तरीके से ठीक हो सकता है। अगर एज ज्यादा है तो कम से कम ये तो हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हो जाए। भाई पार्किंसन के मरीज के साथ में प्रॉब्लम क्या है, जो ओल्ड एज के मरीज हैं उनके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट हो गया। हम सबकी पहली जिम्मेदारी क्या है कि किसी पे डिपेंडेंट होके ना जिए, चाहे हमारी जितनी भी उम्र हो जाए। ये सबसे पहली जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी करने के लिए आपके अपने बॉडी को एम्पावर करना पड़ेगा, है ना। कभी भी ये ना सोचें कि बाद में चल के हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो बहुत खराब सिचुएशन होती है। चाहे आपका बेटा बेटी ही क्यों ना हो, एक उम्र दराज इंसान को कभी किसी के पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपकी बॉडी एम्पावर होगी। तो अगर आप इंडिपेंडेंट भी हो जाए तो इट्स एन अचीवमेंट, इजंट इट। तो ये तो करना ही चाहिए। बाकी आप जो मर्जी ट्रीटमेंट कर रहे हो वो तो मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट तो है नहीं है, क्योंकि एक भी केस तो नहीं है ऐसा कि जिसका ट्रीटमेंट हो गया। जो प्रूफ मांगा जाता है ना, प्रूफ, और हम लोग तो भारतीय हैं, हम लोग तो क्वेश्चन ज्यादा करते हैं। तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते? एक इंसान ठीक हुआ क्या लिवोडोपा ट्रीटमेंट से? एक इंसान ठीक हुआ क्या? या अभी 100 साल की हिस्ट्री में एक भी पार्किंसन ठीक हुआ है क्या? आप सवाल ही नहीं करते। सफेद कोट देखा, सवाल ही नहीं करेंगे। वो अंग्रेजों की जो हमारे को डर लगा हुआ है ना आपसे 200 साल से, वही लगा हुआ है अभी तक। तो ये सब काम छोड़िए, होश में आइए और ये सवाल पूछिए सही से, और कम से कम वो काम जरूर कीजिए जिससे कि बेनिफिट मिले, कम से कम बॉडी एम्पावर हो जाए, कम से कम इंडिपेंडेंट हो सके हम, प्रॉब्लम जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाए हमारे, है ना। और एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लेंगे। Rashmi ma'am, you Excuse can me, sir. ask your question. Excuse me, sir. I actually had a question. Hello, sir. हाँ। Namaskar. I'm Medhaj from Goa. Sir, actually मुझे ये पूछना था कि हम मतलब मेरे छोटे से ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तो कि we breathe from our chest and we breathe from our stomach. तो मुझे ये जानना था सर कि हम अपनी चेस्ट से कब ब्रीथ करें और स्टमक से कब ब्रीथ करें, एंड हाउ डज इट अफेक्ट आवर बॉडी? पहली बात प्लीज अंडरस्टैंड, वेन एवर यू वर गिवन बर्थ और यू वर गिवन लाइफ, जब आप पैदा हुए थे यू वर एम्बेडेड विद द सेंस ऑफ लाइफ। तो आप किताब पढ़ के ज्ञानी नहीं होते, किताब पढ़ के आप बुद्धू हो जाते हैं। किताब जो नहीं पढ़ता कम से कम अपने बॉडी को ऑब्जर्व करता। किताब पढ़ के आप गूगल में फाइंड आउट करते हैं कि भाई मुझे कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कम ऑन, मतलब दिस सेंस इज देयर विथ एवरी एनिमल, विथ एवरी बर्ड, but the only human being seems to be losing it because they are studying too much. ठीक है ना। तो एजुकेशन मेक्स यू लेस इंटेलिजेंट, है ना। हार्वर्ड का रिसर्च है 25 years of education gets your intelligence down by 70% irrevocably. तो आपका बॉडी जानता है कि उसको सांस कब लेना। मुझे बताइए, आपके बॉडी में आप हार्ट बीट करवाते हैं, लिवर फंक्शन करवाते हैं, किडनी फंक्शन करवाते हैं, लंग फंक्शन करवाते हैं, न्यूरो फंक्शन करवाते हैं? अरे बाबा, कुछ भी नहीं करवाते, फिर भी काम कर रहा है ये। जहां छेड़छाड़ करोगे उसके काम में बाधा डालोगे। प्रकृति में हमने छेड़छाड़ किया, बेचारे सबको मार दिया। 80% ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट। तो आप अपना छेड़छाड़ करना बंद कीजिए। बॉडी को मालूम है कहां से सांस लेना। जब आप ज्यादा काम करेंगे, बहुत तेजी से काम करेंगे, हेवी काम करेंगे, तो बॉडी अपने आप चेस्ट की तरफ में ले जाता है ब्रेथ को। जब भी आप रिलैक्स होकर काम करेंगे, बॉडी अपने आप पेट की तरफ में ले जाता है ब्रेथ को। इट्स एन ऑटोमेटिक मैकेनिज्म। और एक तो फिरंगी की बात मत सुनिए किसी। सबसे बेवकूफ प्रजाति ह्यूमन हिस्ट्री में इस फिरंगी गोरे जो हैं, वेस्टर्नर्स, जो बोलेंगे गलत बोलेंगे। आपको अच्छा लगेगा सुनने में केवल, मगर वो गलत ही बोलेंगे क्योंकि बुद्धि कम है उनमें। तो उन्होंने यहां से सारे साइंस चुराया, पैकेज करके हम ही को बेचना शुरू कर दिया।
ब्रेथ वर्क जिसे वो बोलने लग गए। अब चेस्ट से करना है, पेट से करना है, यहां से करना है, वहां से करना है, मगर आप देखो आपके बॉडी को मालूम है कहां से करना है, अगर आप इंटरवेंशन ना करो तो। जब भी आप दौड़ेंगे तो आपके चेस्ट से ज्यादा आएगा वो ऊपर की तरफ। जब भी फास्ट एक्टिविटी होती है आपका ब्रेथ चेस्ट की तरफ में आएगा, बिकॉज दैट इज हाउ इट हैज टू बी, तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट रिलैक्सिंग इजी काम करने लगे आपने, आपका ब्रेथ सो जाएंगे तो पेट से आएगा बिल्कुल, क्योंकि दैट इज हाउ यू विल बी मोर इफेक्टिव। कॉन्शियसली आप करने की कोशिश करेंगे, सारा सिस्टम बिगाड़ देंगे, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसली आप ये करेंगे, सारा सिस्टम बिगाड़ देंगे, बिकॉज द बॉडी नोज व्हाट टू डू, बट डोंट इंटरवेन इन द प्रोसेस ऑफ द बॉडी। वी हैव डन इट टू मच एंड वी हैव डिस्ट्रॉयड द सिस्टम। हाँ या ना? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 100 साल पहले, 200 साल पहले लोगों को सांस लेना नहीं आता था, इसीलिए वो हेल्दी थे हमसे ज्यादा? आप करेक्ट बोल रहे हैं। नहीं, क्योंकि ये जस्ट मैंने एक ऑब्जर्व किया था कि जब पेट से सांस लेता था तब एक एनर्जी क्रिएट होती थी बॉडी में। और जब चेस्ट से होता था वो रिलैक्स होती थी, बस इतना ही। वो भी मत सोचो, ये भी गलत सोचो, वो सोचो ही मत, जी वो सोचो मत। डोंट गिव टू मच अटेंशन टू योर ब्रेथ, अदरवाइज इट विल जस्ट गेट डिविएटेड। गुरुजी नमस्ते गुरुजी, मुझे एक लास्ट पूछना था कि मेरी मदर इन लॉ है, उनको नी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चलने में, बेंड करने में, बट उनको और भी दूसरी प्रॉब्लम्स है। उनको स्किन में एडिमा है, स्किन में खुजली होती है, एक्जिमा है, और उनको सुनाई में बिल्कुल नहीं आता। मतलब 10% हियरिंग विद हियरिंग एड, वो जो कान में डालते हैं मशीन, उससे 10% ही सुनाई में। एक कान तो पूरा बंद हो चुका है, दूसरे कान में सिर्फ 10% सुनाई में आता है, वो भी मशीन के अब थोड़ा सुनाई में नहीं आता तो चिड़चिड़ हो गए। अब ना उनको कुछ करना है, मतलब अभी ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो हम इन्हें किस तरह से करवा सकेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारे मल्टीपल चीजें हैं, स्किन का भी है। देखिए ऐसे, हाँ मैं बता देता हूँ, ऐसे में क्या है, किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई उनके साथ उनको सपोर्ट करें, जैसे प्रोग्राम में वो ज्वाइन करके वो सीख के उनको करवाएं, क्योंकि उनके लिए ना, उनके कान के लिए भी हम स्पेशल प्रोसेस दे सकते हैं, बट क्या है कि उनको करवाना पड़ेगा। एक तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन के लिए जो उम्र दराज लोग हैं उनको थोड़ा वैसे भी प्रॉब्लम आती है, तो कोई अगर यंगस्टर उनको हेल्प कर दे और साथ में सीख के उनको सिखा दे, तो ये हम अलाउ करते हैं। जो कि जहाँ पे कि जो लोग कर नहीं पाते ना, उनके लिए अभी कभी कभी क्या होता है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी हो जाती है। कुछ लोग ना ये जानते हैं इंग्लिश और हिंदी में से कुछ भी नहीं जानते, तो हम कहते हैं कि जो जानते हैं ना वो साथ में करके, लेकिन कस्टमाइजेशन उनका ही होगा, क्योंकि उनके साथ में जो फॉर्म जो होगा, जो एक्सपेरिमेंट होगा ना, वो उन्हीं के ब्रेथ के साथ में और उनके इमोशन के साथ में, ये सब एक्सपेरिमेंट आपको उनके साथ में करके वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो कस्टमाइजेशन फिर उसका होगा, बस आप उनको सिखा सकते हैं, उनको सिखा ये कर सकते हैं। तो देखिए अभी मुझे शिफ्ट करना है किसी और देखिए आपका अभी कोई और क्वेश्चन है? सुनिए मेरी बात सुनिए। आप क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, यहाँ पे डाल दें, आपको आंसर मिलेगा। अभी मुझे दूसरे तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा ना, एक और टाइम फिक्स किया होगा, तो वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप अपना क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, या यहाँ पे चैट बॉक्स है वहां पे भी डाल सकते हैं। सभी का आंसर सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर उनको मिल ही जाएगा। पर अभी मुझे शिफ्ट करना है किसी और नहीं, अभी टाइम नहीं है, मैंने ज्यादा टाइम दे दिया अभी। एक लाइन में हेलो, हाँ बोलिए। अरे वो गेहूं नहीं खाना चाहिए, ऐसा ट्रेंड चल रहा है, रोटी छोड़ना चाहिए हमें। देखो पहली बात, आप जो नहीं पचा पाएंगे कैसे खाएंगे? आप पचाने की शक्ति अच्छी कर दीजिए, फिर पत्थर खाओ। ओके, है ना? तो वो उस पे काम करो ना। अब गेहूं छोड़ दोगे, चावल छोड़ दोगे, सब्जियां छोड़ दोगे, फल छोड़ दो, खाओगे क्या, जियोगे क्या? तो अपना वो स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए, डाइजेशन का कुंभक करिए, डाइजेशन स्ट्रेंथ बढ़ाइए, सब कुछ खाइए, मौज में जिंदगी जिए। जी ठीक है, थैंक यू सर। नमस्ते, थैंक यू सर। पूछना था, मैं जब डीप ब्रीदिंग करता हूँ ना। Thank you so much, Swamiji, and to all the participants who have stayed till the end and has wanted to ask many questions we've not been able to answer. So you can put it in the webinar group and your questions will be shortly answered.
Thank you so much. Good night. Stay well. Stay happy. Signing off. Rachna Mittal.